Hello everyone, Assalamu alaikum. So we are back with our 23rd workshop of Machine Learning Zero to Hero program. And today's workshop is also being powered by Google AI as a part of Explorer Machine Learning program, Explorer ML program. And first of all, sorry for that, for being not for unable to provide the videos of the last two workshops so quickly. The reason was this guy. This is my SSD of my system, and it just went down suddenly, and I was like my weaponless because software engineer without a computer, any IT geek without a computer is like a warrior without his weapon. So that is why it takes so much time. I was having all my videos, all my sessions recorded, all my you can say softwares installs on this baby here, and this just went down. So it took me some time to install things on other platform, then download some videos from there, and yeah, of course कुछ क्वेरीज थी बहुत सारों की जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लाइक डिस्कॉर्ड पे मुझे रिसीव हो रही थी, कुछ व्हाट्सएप पे रिसीव हो रही थी. So I was also not unable to engage with those guys so quickly. उसकी reason सिर्फ एक ही reason थी, and the reason was कि I was involved with my some personal projects so urgently कि मुझे 3 to 4 days I was busy in that. All right, so let's switch to our notebook. What we are going to do today, it's a very simple task that we have to perform. आज TensorFlow पे हमारी first stairs होंगी, which we gonna jump on. Last time हमने एक intro देखा था that how neural network usually look like. Okay, many students try to perform linear regression and they got failed. And when I tried to perform, I got failed too. And this was a systematic thing. Of course, होता है first time कभी भी आप एक ही flow पे चलते हुए आप कभी भी linear regression perform नहीं कर सकते. And all codes differ from each other for each data set. So, but I was thinking to use the same data set, which is headbrains.csv we used for linear regression using scikit-learn library. But since this program is powered by Explore ML as a part of Google AI program, so we are using their own repository today for the explanation. Today we're going to perform linear regression and multiple regression at the same time. ओके, अब टेंसरफ्लो को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा अयान? गुड क्वेश्चन. So simply write pip install TensorFlow. I guess that was the same thing. Or you can simply navigate to the TensorFlow documentations to see that TF था या फिर TensorFlow था. Pip install करके आप स्पेस देके command prompt पे you can अगर आपके पास Linux है या MacBook है तो then you have to open terminal and simply write pip install TensorFlow and it will install TensorFlow in your Python environment. But make sure pip is already installed, otherwise you're gonna make some troubles. To install the pip, अगर pip कभी किसी का install ना हुआ in case, it's very basic to this thing. उसका भी simple तरीका है, simply write python free install pip. तो अगर Python का environment बना हुआ है तो pip भी install हो जाता है. अगर Python का environment नहीं बना हुआ, so I'm afraid. All right. So let's switch to our notebook and just wait a minute. I want to kill this guy. This guy gives me so many troubles. It's such important time. I have thousands of GBs here and it just went down. All right. So you can access this notebook at this repository. Let me share the URL of this repository here. Okay. Getting started with TensorFlow. Copying the link from here. All right. So GitHub का URL I have मैं share कर दिया GitHub का URL. I've already shared that in the Q&A. You can access it or you can simply navigate. और जिन्होंने मेरी इसको fork किया हुआ so they can simply access their own GitHub profile. यहाँ से आप simply यहाँ पे navigate कर लेंगे. There is no dataset implemented separately because we are getting dataset from this URL. I have already mentioned the URL here. ये आप अपने पास यूज कर सकते हैं, अपनी गिटअप पे भी डाल सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज दिस इज नॉट माय ओन यू कैन से नोटबुक, दिस इज नॉट योर ओन नोटबुक एज वेल. तो जब भी अगर आप डाल रहे हो कहीं पे भी, सो यू हैव टू मेंशन दिस कॉपीराइट नोट सेम एज इट इज, दैट दिस इज द टाइटल हियर,
copyright this and then this ठीक है यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस सब ये तो लाइनें लिखी आ रही हैं but if I double click to this so then it will expand to the all details what we have mentioned here. So license under the Apache license version 2.0, then we are having MID license, and of course you cannot own this. Okay, that's a very high thing you must know. You can simply own these high profile copyrights easily. All right, so if you are about to copy this notebook, so please mention this license. I'm emphasizing on this, there is some matter behind it. All right, so you already know what is regression. All right, आपको पता है regression कौन सी analysis होती है. We have performed classification, we have performed unsupervised learning, which you can say clustering, and we have performed regression too many times. But in neural networks, we simply perform regression today, and maybe tomorrow we will gonna perform classification, and maybe we perform classification on text and on images well. We'll see that according to the difficulty level, which will not be so hard for you guys. So clustering शायद हम ना perform करें in the left days because classification ही हमारी इतनी लंबी होगी that it will extend to a deep learning program, and then we're gonna move towards our special methods of deep learning in where we are having GANs and some other things as well. Then we may have clustering, sort of clustering there. In computer vision, we have transfer learning as well. In deep Q learning, we have reinforcement learning as well. But to understand that, you have to understand the neural networks and classification and regression much better than others. तो रिग्रेशन में आज आपको सारी समझ में आ जाएगी रिग्रेशन किस तरह परफॉर्म हो रही है एंड क्लासिफिकेशन हम थोड़ा लंबा लेके चलेंगे. वी हैव सो मेनी डेज एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर एंटायर मशीन लर्निंग एज फार आई कैन से being living in Pakistan, but for the international level it may take 2 or 3 workshop as well. Then you can call yourself a machine learning developer or anything you want to say, but without deep learning there is no AI engineer, so we may have another program as well, inshallah. All right, so what in this problem we're gonna do? We're gonna predict the output of a continuous value like price or probability. In this we are अच्छा इसके अंदर हमारे पास कहीं पे क्लासिफिकेशन में भी मौजूद हो इन डेटा सेट. ठीक है ना, यहाँ पे मैं इन्होंने पहले ही अलर्ट दे रखा है दैट कंट्रास्ट दिस विद आवर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. ठीक है ना, ये तो यहाँ पे हो सकता है देख लेंगे या क्या लिखा हुआ मैंने गौर से नहीं पढ़ा. जस्ट गॉट दिस few minutes ago and just make it run away. बिकॉज मेरे पास पहले से नोटबुक पड़ी थी तो रन टाइम पे मैंने कहा एक दफ़ा रन करके देख लूँ. जस्ट 5 minutes देखा एंड देन आई कम हियर. So this notebook uses the classic ROMPG dataset. Okay, you can visit this dataset by simply clicking this URL. And what is this dataset shows? I know about this dataset because I've already worked on this dataset many time ago. Actually, yeah, इसमें 1970s से लेके 1980s तक की cards हैं. I guess let me see it again. Yeah, 1970s, late 1970s and till early 1980s की कार्ड्स यहाँ मौजूद हैं जिसके अंदर उनके कुछ डाटा है और डाटा की रिगार्डिंग मतलब उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन है और हमें प्रिडिक्ट करना है. क्या प्रिडिक्ट करना है? द एट्रीब्यूट एमपीजी. देयर आर मे बी 8 कॉलम्स हियर. अभी क्या है यहाँ पे अगर हम एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन देख लें, सो लेट मी जूम इन दिस फॉर यू. As I said, okay, I am just on a random right now. I will see and explore that what is happening in this notebook. I'm not prepared for today's notebook because that's a huge fun for me. All right, so MPG is a continuous data. All right, cylinders is a multivariate discrete. Okay. Not such huge details we are having here. So we have to predict MPG. All right. यहाँ पे लिखी हुई है this data set is slightly modified version of the data set provided in this stat library in line with the use by okay. All right, so the data concerns city cycle fuel consumption in miles per gallon. कि आप सिंपली कह रहे हैं कि हमें प्रेडिक्ट क्या करना है कि वो कितने माइल्स दे रहा है पर गैलन. And now we are having here some acceleration rates, some weight of the vehicle, the model year, the origin, the name of the car, the horsepower, the displacement and cylinders. So there are so many things here we are having.
So इन चीज़ों को देखते हुए वी गोना सी दैट विच कार इज गिविंग द मैक्सिमम माइलेज। माइलेज क्या होता है कि अच्छा माइलेज बेसिकली हमारे पाकिस्तान के अंदर या यूजुअली जो अब इंटरनेशनली नोटिस किया जाता है इट इज नोटिस्ड ऑन किलोमीटर्स और माइल्स पर लीटर। ठीक है, माइल्स या किलोमीटर्स पर लीटर, बट दिस इज मेजर्ड इन पर गैलन। तो व्हाट वी कैन डू, अब हम हमारा गैलन के अंदर गैलन में निकाल लेंगे, बट राइट नाउ our standard ratings as far as I know is miles per liter or kilometer per liter. Okay, so here we are in our notebook. Let me see if there is any question here. All right, no question. ओके, ट्रांसफर को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग अपने सिस्टम में इस पर काम कर रहे हैं, अगर इसमें कोला पे काम कर रहे हैं तो ट्रांसफर पहले से इंस्टॉल होती है। एंड मेक श्योर दैट आफ्टर इंस्टॉलिंग ट्रांसफर यू गॉट दिस वर्जन। You can simply know this by writing this statement, all right? So here we are having matplotlib for visualization, numpy for arithmetic arrays, pandas, data in output, cbon, ऐसे नहीं मैंने खुद डाल दिए थे, फिर मैंने कहा वर्कशॉप का टाइम हो गया तो फिर मैं ऐसे ही आगे बाकी में डाल नहीं सका। Import TensorFlow, yes, we are importing TensorFlow for our neural network things, keras, layers, and we are importing pre-processing from TensorFlow, keras.layers.experimental. All right, one more thing. Now I'm gonna dive today in our layers thing. जब हम layers पे implement करेंगे, I'm gonna tell you what is sequential, what is functional in a short and layman form. I'm not going to be in an advanced manner right now because you're gonna die here. So I will keep it simple as far I can do. All right, you can get detail set I have mentioned here as well. I have not mentioned, Google have mentioned. This is repository owned by Google. Okay, so here is the URL. आपको सिंपल डेटा सेट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका डेटा सेट आपको डायरेक्ट नोटबुक में डाउनलोड हो जाए तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यू कैन सिंपली कॉपी दिस एंड सर्च हेयर। आप अपने पास अगर CSV फाइल देखना चाहते हैं सो यू कैन स्टिल डू इट। यहाँ पर हमारे पास एक URL आ गया फॉर डाउनलोडिंग और फाइल। अच्छा, यहाँ पे हमें ये कॉलम्स नेम रखने हैं MPG, सिलेंडर, डिस्प्लेसमेंट, हॉर्स पावर, वेट, acceleration, model year, origin, because as I know, as far I know कि जो original data set है हमारे पास उसमें हमारे पास columns नहीं है। So we are not currently preparing by scratch there. We already knew कि हमारे पास इस data set के अंदर ये columns नहीं है। So if you want to explore data set by your own, so you can simply come here or simply go and check that URL. यहाँ पे पूरा का पूरा फोल्डर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन भी पड़ी हुई है। सो डू व्हाटएवर यू वांट, ऑलराइट, दैट्स योर आफ्टर वर्कशॉप प्ले। और यहाँ से हमने जब रीड करा CSV फाइल को, सो मेकिंग इट मोर सिंपलर, हमने यहाँ नाम दिया हुआ है ड्रॉ डेटा सेट। नाम तो आपको भी दे सकते हैं, ड्रॉ डेटा सेट इज इक्वल टू pandas.read CSV एंड देन वी हैव गिवन इट URL। हमेशा आपको पता है कि हम जब भी pandas.read CSV देते हैं तो हम एक URL पास करते हैं इन द स्ट्रिंग। what the heck, so now we are currently having this URL here from HTTP to so on। तो यहाँ पे हमने सिंपली यहाँ पे एक ये वेरिएबल डाल दिया है URL। तो ये बेसिकली स्ट्रिंग ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इन दिस आई एम हैविंग दिस URL मैन, जस्ट ग्रैब मी आउट। एंड यहाँ पे उसके बाद हमने यहाँ पे बोल दिया भाई नेम्स इक्वल टू कॉलम्स नेम। अब कॉलम्स नेम हमारे पास एक लिस्ट थी, सो instead of passing the entire list of the strings for the columns, we simply represented this in a separate name and just pass here। Alright, then we already know कि हमारे पास जो नल वैल्यूज हैं वो नल से रिप्रेजेंट नहीं है, हम किससे रिप्रेजेंट है, क्वेश्चन मार्क्स हैं। Now this is very important when someone creates a data set and which is not created by you, so it is important for him as of course। अब यहाँ पे अगर आप डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन डाउनलोड करेंगे, so you will get to know, you can read description later on supported text editor। please install VS Code। I guess I don't have VS Code installed yet because I just did install few things just right away. You can see just even though I have installed some things you cannot see here by the way। तो मेरे पास अभी VS Code नहीं है, otherwise I can show you that file। Alright, तो यहाँ से आप ना सारी की सारी चीजें चेक कर लीजिएगा बाद में। So here we are having null values in the form of question mark। जहाँ पे null values होंगी यहाँ पे उन्होंने question mark डाल दिया ना स्ट्रिंग।
देन जहाँ कमेंट्स थे वहाँ पे उन्होंने स्लैश टी डाल दिए, तो जहाँ पे स्लैश टी आएगा उसको कमेंट समझ के उस रो को इग्नोर कर देगा. देन आवर डेटा इज नॉट सेपरेटेड बाय अ कॉलम. वाओ, दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग वी हैव. अब जब हमारे पास डेटा कॉमा से सेपरेटेड नहीं है तो सो फ्रॉम what it is separated, so it says it is separated with a space. अब जब स्पेस हमारे पास होता है ना, so that's absolutely essential कि कोई हमारे पास ऐसा नंबर या कोई स्ट्रिंग होएगा ही नहीं जिसके अंदर कोई स्पेस हो, क्योंकि जहाँ स्पेस होगा उसने वो सेपरेट करना. सो वी आर हैविंग स्पेस एज अ सेपरेटर. Then we are having skip initialize space. All right. Why we are having this? I don't know. Let's just explore that. I am doing it all random. It's being honest with you guys. So let's explore what is this. Okay. Random करने का अपना ही मजा होता है. All right, all right. Uh, all right. So that is a very wonderful thing I've seen here. अच्छा हो गया, मुझे मालूम हो गया. वैसे ये थी यूजुअल प्रैक्टिस में होता नहीं है, लेकिन इस सेट डेटा सेट के मुताबिक मैं यूजुअल प्रैक्टिस में आ गया. बाय यूजिंग दिस स्किप इनिशियलाइज स्पेस इज इक्वल टू ट्रू, वी आर सेइंग के हमारे पास अगर किसी इनिशियल नेम के स्टार्टिंग में वाइट स्पेस हो, मतलब स्पेस हो. वाइट स्पेस क्या बोलते हैं? वाइट स्पेस किसे बोलते हैं? एक्स्ट्रा स्पेसिस को. जब एक्स्ट्रा वर्ड के दरमियान स्पेस है लेकिन उसके पीछे बहुत सारा स्पेस हो या वर्ड के आखिर में बहुत सारा स्पेस हो, so that is known as white space. तो अगर हमारे पास white space हो, इनिशियल फॉर्म फैक्टर मतलब इनिशियल white space हो, तो उसको हम बता दिए कि हाँ है. तो अगर है होगा तो वो उसको क्या करेगा? हटा देगा, रिमूव कर देगा, बिकॉज इट वी हैव मेंशन इट एज ट्रू फॉर द स्किप इनिशियलाइज स्पेस. तो सारी हमारे पास इनिशियल white space जो होंगी वो रिमूव हो जाएंगी. देन ओके, डेटा सेट इज इक्वल टू रॉ डेटा सेट डॉट कॉपी. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? Alright, so this is a very important thing here. यहाँ पे हम अगर लिखते डेटा सेट इज इक्वल टू रॉ डेटा सेट, तो यहाँ पे हमारे पास उसका रेफरेंस कहाँ पे शेयर हो जाता है? डेटा सेट में शेयर हो जाता है. यहाँ पे हम कोई और कहानी कर रहे हैं. What we are doing here, we are passing the copy of that current data set to the another variable. गौर से समझिएगा. For example, I am having this mobile here. यही अभी करीब था. So अगर मेरे पास ये मोबाइल है, मैंने उसको एक नाम दे दिया लाइक दिस इज सैमसंग, एंड देन मैंने एक जगह इसका नाम सैमसंग दे रखा है और एक जगह नाम इसको गैलेक्सी दे रखा है. कोई गैलेक्सी से अप्रोच करेगा तब भी वो इस पर आएगा, कोई सैमसंग से अप्रोच करेगा वो तब भी इस पर आएगा. लेकिन अब मैं इसकी अगर एक अलग नई कॉपी तैयार कर दूं और उसको मैं बोल दूं गैलेक्सी, उसको बोल दूं सैमसंग, जिसको मैंने गैलेक्सी बोला हुआ होगा वो गैलेक्सी उस वाले मोबाइल पाएगा, जिसको मैंने सैमसंग बोला होगा उस वाले सैमसंग उस वाले मोबाइल पाएगा. ऑलराइट. तो भाई यही सीन यहाँ पे भी हमारे पास हो रहा है. तो हमारे पास हमने रॉ डेटा सेट की कॉपी जनरेट करके हमने डेटा सेट में ट्रांसफर कर दी है, एंड देन वी आर व्यूइंग द लास्ट 5 लाइंस ऑफ आवर data set dot tail represents the last few lines of our data set. Let me see if there is any question. ओके अयान, अगर टेंसरफ्लो इंस्टॉल करते टाइम एरर दे रहा है तो मुझे उसका सेशन इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप कर देगा, एंड मस्ट मेंशन योर नेम अयान एट द लास्ट मैसेज. No, brother, session is not over. Why there is one guy who's saying, who's asking that is session over? No, how can session be over right now? अभी तो start हुआ है. All right. So let's view this data set. थोड़ा देख लेते हैं भाई इसको भी. छोटा सा ही है ये, इतना भी मैंने छोटा नहीं किया यार. All right. It's lagging today because of my SSD. My SSD died today. I'm working on hard drive. Okay, clean the data. The dataset contains a few unknown values. Dataset dot is na dot sum. Okay. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? राइट, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास कोई नल वैल्यूज मौजूद है. ये हमने कई दफ़ा कर रखा है, आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. तो यहाँ पे सब में 0 आ रहा है. ऑलराइट, यहाँ पे 6 आ रहा है हमारे पास. ओके, सो हॉर्स पावर में हमारे पास आ रहा है कि भाई इस कॉलम के अंदर हमारे पास 6 नल वैल्यूज हैं. तो बहुत कम है वैसे, हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा था. अगर हम ड्रॉप भी कर सकते हैं इसको वैसे तो. देखें इन्होंने क्या किया. Alright, so they have actually dropped these values. Great, because these 6 values are not
going to by dropping these 6 values, we are not sacrificing the quality of our model because we are still having so much data as compared to that. 6 values हमारे अगर हम ड्रॉप कर देंगे तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ना. So we just simply drop it instead of finding out mean or anything else. तो यहाँ पे हमने लिख दिया डेटा सेट इज इक्वल टू डेटा सेट ड्रॉप एन है. ये वो काम है जो पिछले 20 दिनों में आप लोगों ने रच के किया है. सो तभी मैं थोड़ा तेज भाग रहा हूँ. Data set is equal to data set dot drop n, and then the origin column is really categorical, not numeric. So convert that to a one hot. You can set up the Keras model to do this kind of transformation for you. That's beyond the scope of this tutorial. See, okay. अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज़ होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे थे डेटा सेट के अंदर, उन्होंने बोला है कि Keras मॉडल के थ्रू भी हो जाती है, बट for right now there's going to be a very advanced, or that's they are actually genuinely right now. अगर हम जो एक ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन होती है पूरी, एंड दैट्स अ वेरी टफ थिंग. पूरे ट्रांसफॉर्मर क्रिएट होते हैं. We may not see this transformation thing maybe in this machine learning program, so that is why they are not doing by transformation. हम सिंपली उन्होंने बोला है कि हम वन हॉट इनकोडिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे अपने हिसाब से. लेट्स सी, अपने हिसाब से. ये लोग साइकिल के इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं. देखते हैं भाई गूगल वालों ने क्या बेहतर समझा. ऑलराइट, सो डेटा सेट ओरिजिन इज इक्वल टू डेटा सेट ओरिजिन डॉट मैप. ओके, अच्छा सही हो गया भाई, समझ गया मैं. जहाँ पे हमारे पास डेटा सेट ओरिजिन मौजूद था, और यहाँ पे अगर आप देखो डेटा सेट में जरा ऊपर दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है ओरिजिन 1 2 1 1. अच्छा, इसकी डिटेल्स यहाँ पे हमने मेंशन नहीं की हुई. आप डिटेल्स बिल्कुल जाके इनकी इधर जाके देख लीजिएगा. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ते रहिएगा, इसको एक्सेस करके देख लीजिएगा. तो सॉरी, इनको एक्सेस करके देख लीजिएगा तो आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी. और लेकिन हमें यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पे हमारे ओरिजिन के कॉलम के अंदर 1 2 3 वैल्यूज इस तरह से वैल्यूज हैं. तो इन्होंने नीचे यहाँ पे क्या किया है इसको कि 1 2 3 बेसिकली दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटिंग सम country based regions, like 1 is representing USA, 2 is representing Europe, and 3 is representing Japan. अब हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, जो एक कॉलम की बजाय उसको रिमूव करके हम क्या बना रहे हैं, हम उस पर 3 कॉलम डाल रहे हैं. किस नाम से? यूएसए, यूरोप, जापान. ये बहुत बेहतरीन चीज़ करी है इन्होंने. आई लव दैट थिंग. ये भी वन हॉट इनकोडिंग का एक तरीका होता है, बहुत बड़ा प्रोफेशनल तरीका है ये, कि आप एक कॉलम के अंदर एक एरे नहीं बना रहे होते 1001 का, मतलब कि आप 3 डिफरेंट कॉलम बना रहे होते हो. अब इसमें क्या हो रहा होता है कि इसमें मशीन लर्निंग के लिए बड़ी आसानी हो जाती है. कैसे? हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने बोला कि भी डेटा सेट ओरिजिन डॉट मैप कर दो. अब यहाँ पे ओरिजिन के अंदर जितने भी डेटा सेट थे ना, अब उसमें जो जो 1 रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो यूएसए जो 1 रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो एक नए कॉलम में चले गए. किस नाम से? यूएसए के नाम पे. और जहां जहां 1 था वहां इसमें भी 1 ही आ गया. अच्छा, जहां जहां यहाँ पे 2 था ना, वहां पे उसने 1 ही रिप्रेजेंट किया होगा, बिकॉज दिस इज नोन एज वन हॉट इनकोडिंग टेक्निक. आई होप दैट यू गाइस अंडरस्टैंड प्रीटी वेल. सो यहाँ पे जहां जहां 2 है, यहाँ पे भी 1 1 आ गया. अब इसके लिए इसने एक नया कॉलम बना दिया. जहां अब यूरोप के अंदर अगर 1 है ना, तो वहां पे यूएसए और जापान में 1 सवाल ही नहीं पैदा होता कि हो. देन जापान का 3 था. अब जहां जहां जापान में 3 था, अब यहाँ पे तो खैर लास्ट में जापान में कहीं 3 नहीं था. सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट सी हियर 1 इन दिस कॉलम. तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसने ओरिजिन को 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया, और जो कॉलम की कहीं पे पॉजिटिव वैल्यू बन रही थी वहां पे उसने क्या किया, उसको मैप कर दिया 1 और 0 से, कि हाँ भाई ये अमेरिका की है, नहीं ये यूरोप की नहीं है, ये जापान की नहीं है. तो इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है. Alright, so I hope guys you are pretty able to understand this. Sir, our workshop will be finished before 1st of November or not, sir? Okay. Yes, 1st November को शायद हमारी last workshop है. We'll see. लेकिन yeah, I noticed that कि कुछ यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन स्टार्ट है 2nd नवंबर 3rd नवंबर से. तो 1st नवंबर को हमारी जो वर्कशॉप होगी ना, वो आधे घंटे की होगी. वो बेसिकली पार्ट 2 होगा हमारे प्रोजेक्ट का. पार्ट 1 हम पहले कर चुके होंगे, पार्ट 2 हम अगले दिन कर रहे होंगे. सो वो छोटी छोटी वर्कशॉप
टुडेज का मसला नहीं है, तो पहले पहले है जो है, सो डोंट वरी अबाउट योर एग्जामिनेशंस, आई केयर अबाउट योर एग्जामिनेशंस। ऑलराइट, data set is equal to pandas dot get dummies, data set prefix separator. Okay, now let's see, this is saying me I am having bad info quality, am I? Let me know. अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे 3 कॉलम बना दिए हैं। अब यहाँ पे हमने एक वो कर रखा था, यहाँ पे जब हमने इसको बना दिया ना, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ pandas डॉट गेट डमीज। ये क्या कर रहा था यहाँ पे, मुझे भी नहीं याद आ रहा। लेट अस सी, आई एम ऑल रैंडम गाइस। मैंने सब नोटबुक उठाई है और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सो ओके, ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। सो ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था। ओके, यहाँ पे ये मैपिंग, जब हम मैपिंग कर रहे थे ना, तो ये सारा अकेला काम ही खुद नहीं कर रहा था। ये क्या कर रहा था, जहाँ पे यूएस से था हमारे पास, ये बस वहीं पे ही 1 दे रहा है। जहाँ पे हमारे पास जापान था, वहाँ पे 0 दे रहा था। मतलब इस तरह का सिनेरियो था। ये 100 वाली कहानी जो थी, हम यहाँ पे इसके थ्रू परफॉर्म कर रहे थे। तो वही यहाँ पे हमारे पास जापान, यूएसए, यूरोप के अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। मजीद जाना हो इन चीज़ों के अंदर, तो आप पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, एक एक पेज की, कोई इशू नहीं है। टुडे आवर पार्ट इज नॉट प्री प्रोसेसिंग, यू कैन सी इन एजेंडा टुडे। हम लोग देखेंगे लीनियर रिग्रेशन, मल्टीलिनियर रिग्रेशन, लेयर्स वगैरह, मॉडल्स वगैरह। दैट इज व्हाई आई एम रनिंग फास्ट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। एज अ ट्रेडिशन, स्प्लिटिंग अ डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। अच्छा, यहाँ ना बहुत ही कोई यूनिक टेक्निक हमने इन लोगों ने यूज़ कर रखी है। Now split the data set into a training set and a test set. ये क्या कर रहे हैं कि एक वैलिडेशन सेट बना दिया इन्होंने और एक ट्रेनिंग सेट बना दिया। ये लोग वो नहीं कर रहे कि भाई फीचर सेट अलग कर दो और टेस्टिंग सेट, ट्रेनिंग का मतलब एक्स अलग कर दो, वाई अलग कर दो, फीचर अलग कर दो, टारगेट अलग कर दो, और फिर फीचर का टेस्ट अलग कर दो, टारगेट का टेस्ट अलग कर दो। दे आर जस्ट स्प्लिटिंग द एंटायर डेटा सेट इनटू 2 पार्ट। 80% हमने फ्रैक्शन दिया है कि मीन्स हमारा 80% ट्रेनिंग टेस्ट होगा और रैंडम सेट हमने 0 दे दी, रैंडम नहीं रखना, चलो कोई बात नहीं। और टेस्ट डेटा सेट हमारा किस तरीके से है, अच्छा ये जो था ना डेटा सेट डॉट सैंपल, ये बेसिकली जो मेथड है पांडास का ही है। तो ये आप किसी भी डेटा फ्रेम के आगे डॉट लगा के इसको यूज करके ये भी टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। सी वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स हियर। तो यहाँ पे मैंने डेटा सेट डॉट ड्रॉप लिखा। अच्छा, मैंने बहुत टाइम दिया आप लोगों को तैयारी करने के लिए। आई होप नाउ यू गाइस आर टुगेदर विद मी। डेटा सेट डॉट ड्रॉप, यहाँ पे हमारे पास है ट्रेन डेटा सेट डॉट इंडेक्स। ये क्या बता रहा है, ट्रेन डॉट डेटा सेट डॉट इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद था। ये क्या करेगा भाई, इंडेक्स चेंज तो नहीं हुआ ना, मैं इंडेक्स रीसेट इंडेक्स नहीं करा, अब इंडेक्स तो हमारे पास वही है। तो उसी डेटा सेट के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो इंडेक्स इसके अंदर आ गए ना, जो मतलब वैल्यूज इसके अंदर मौजूद हैं, वो हम टेस्ट डेटा सेट से रिमूव कर देंगे। तो बेसिकली हमारे साथ हो क्या रहा है कि जो डेटा सेट हमारे पास पहले आ गया था वो आ गया था। अब नए आने वाले उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से उसको बेसिकली माइनस कर रहे हैं, टोटल में से ट्रेन सेट माइनस कर रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म हो रही है। तो हमारे पास एक टेस्ट डेटा सेट डेवलप हो गया। नाउ इंस्पेक्शन टीम, वी आर गोइंग टू इंस्पेक्ट आवर डेटा। सो हैव अ क्विक लुक एट द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू पेयर्स ऑफ कॉलम। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम बेसिकली पेयर प्लॉट कर रहे हैं। ऑलराइट, यस। तो यहाँ पे हम लोग सी बॉन्ड को यूज करते हुए पेयर प्लॉट कर रहे हैं। Looking at the top of row, it should be clear that the fuel efficiency MPG is a function of all the parameters. Looking at the other rows, it should be clear that they are each functions of each other. All right. Let me see. क्या कह रहे हैं यार, ये बहुत लैग कर रहा है मेरा सिस्टम just because of my hard drive. I don't like hard drive. That is the same way. That is the same reason. I love SSDs, but that betrayed me. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास MPG है, सिलेंडर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वेट है। ये वो है जो न्यूमेरिकली प्लॉट हो सकते हैं। अगर इसमें कोई ऐसा होगा जो न्यूमेरिकली प्लॉट नहीं हो सकता, वो यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे ये हमने शायद MPG सिलेंडर डिस्प्लेसमेंट वेट मेंशन किए हैं। हमने भाई यहाँ पे डायग्राम की काइंड दे दी है, अपनी मर्जी से ही चुनने लगा। इसका मतलब ये कब केडी लिखा है। तो अच्छा, जो MPG और MPG के क्रॉस वैलिडेशन में चल रहा है ना, वहां पे तो आपको एक ऐसा ना बड़ा खूबसूरत सा एक पहाड़ दिखेगा। हर जगह छोटी छोटी पहाड़ियां दिख रही हैं आपको। क्यों दिख रहा है, MPG में भी सेम ये दिखेगा, सिलेंडर सेंटर में भी सेम ये दिखेगा, डिस्प्लेसमेंट के क्रॉस में भी यही सेम चीज दिखेगी, और वेट के उसमें भी ये सेम चीज दिखेगी। लेकिन बाकी सिनेरियोज में आपको क्या दिखेगा,
आपको रिलेशनशिप दिखेगा। ये क्या है बेसिकली, अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके या स्टैटिस्टिकल मेजर पे जाकर देखो ना, तो आप यहाँ पे रिलेशनशिप मेजर कर रहे होते हो कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी आर हैविंग हियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एमपीजी और किसका रिलेशनशिप, डिस्प्लेसमेंट एंड वेट। तो यहाँ पे हमारे पास हल्का सा कर्व भी है और लीनियर भी है, हल्का सा कर्व है। ओके, तो ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा कोरिलेशन बन रहा है। ये जो हमारे पास यहाँ बन रहा है सिलेंडर्स का, ये ऐसा क्यों बन रहा है भाई, ये ऐसे सारे नुक्ते, इसकी रीजन होती है ये यहाँ पे भी पूरी लाइन ऐसी बनेगी और ये यहाँ पे भी पूरी लाइन ऐसी बनेगी। अब उसकी रीजन क्या है? These cylinders are not a continuous value for my on my brain। ठीक है, ये मैं इसको कंटेक्चुअली समझूंगा, उसको मैं कैटेगोरिकल वैल्यू समझूंगा। बिकॉज सिलेंडर क्या होते हैं गाड़ियों के अंदर, आपको पता हो भाई, मैं कहूँ भाई मेरी पेजरो जो है 4 सिलेंडर कार है, आई एम हैविंग 16 सिलेंडर कार। मेरी पेजरो 4 नहीं होती है, मैंने बहुत कम बोल दिया, ऑलराइट। होती होगी शायद, 8 तो होते हैं शायद, V8 या V6। सो 6 सिलेंडर हमारे पास कार है, 8 सिलेंडर कार है, 4 सिलेंडर कार है, 2 सिलेंडर कार है। सो दीज आर लाइक कैटेगोरिकल वैल्यूज, अंडरस्टूड। अब कुछ 0.5 सिलेंडर भी सिस्टम होता है, वो होता ही है। जैसे लाइक 1.5 सिलेंडर कार कौन सी होती है, क्या आपका एक सिलेंडर रेलिवेंटली बड़ा है, ठीक है, और एक सिलेंडर आपका रेलिवेंटली छोटा है। अभी किस तरह से मेजरमेंट होती है कि उस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है। अगर आप कहते हो कि आपकी गाड़ी 2000 सीसी की है, मतलब 2 लीटर की है, 1 cc representing 1000 cc is representing 1 liter, right? तो 1 लीटर 2 लीटर कार आपकी, तो आपका एक सिलेंडर 2 लीटर स्पेस रखता होगा, और आपका दूसरा सिलेंडर अगर 0.5 का है तो वो 1 लीटर की स्पेस रखता होगा। तो दैट विल बी नोन एज 1.5 सिलेंडर कार है मेरी, कितनी, 2 लीटर की। 2.0 कार है मेरी, मतलब क्या है, 2000 सीसी है और 2 लीटर कह लो, कुछ भी कह लो। सो दे कैन बी +- 20 cc, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास पूरी रो इस तरह हुई है जिस तरह कैटेगोरिकल वेरियस प्रिंट होती हैं। एक कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी ए, कैटेगरी ए, कैटेगरी ए। यू कैन सी हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3 4 5 6 8। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हमारे पास, वाह। तो यहाँ पे 2.5 और कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो ये हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज थी, तो हमारे पास ये सिनेरियो बन गया। अब हमें से ये अंदाजा हो गया प्लॉट को देखते हुए कि भाई सिलेंडर जो है हमारे पास, इट्स अ काइंड ऑफ कैटेगोरिकल वैल्यूज, इट्स अ काइंड ऑफ, ठीक है ना, इट्स कैन नॉट से कि भाई कंटिन्यूस नहीं है। अगर देखा जाए तो वैल्यूज कंटिन्यूस है, लेकिन बिकॉज ईच कैटेगरी डिफाइंस द कैटेगरी ऑफ अ कार, सो इट्स अ काइंड ऑफ कैटेगोरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एक परफेक्ट कोरिलेशन बन रहे थे। सो वी हैव जस्ट एक्सपेक्ट और डाटा, हमने अपने डाटा को पहचानने की कोशिश की है। दिस इज द नेचर ऑफ अर डाटा सेट। यही वो 4 फीचर होंगे, या एमपीजी के अलावा यही वो 3 फीचर होते हैं जो होंगे, जो कि क्या कहते हैं, मतलब रोल प्ले कर रहे हैं इन आवर माइल्स पर गैलन। यस अयान, गेट द मीन्स इज इक्वल टू 0 1 में कर देता है ना। यस, यू आर राइट। Okay, train dataset dot today we are having very low amount of people, 100 students. Why? Maybe because of their examinations, maybe. All right. No, sorry, not 100. We are having 400, but still 400 is very poor amount. Usually we have more than 1,000. Why not today? Okay, so train dataset dot describe dot transpose. यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके बाद ट्रांसफर्स निकाल रहे हैं। ये वही टेक्निक्स हैं, आप स्टैटिस्टिकल एफिनिटी मालूम करने की कोशिश कर रहे होते हो। भाई बता देगा कि टोटल हमारे पास इतनी काउंट वैल्यूज थी, उनका मीन ये निकल रहा था, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन ये निकल रहा था, मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये थी, 25% ये निकला, 50% ये निकला, मैक्स ये थी। सो these are the relations to ourselves and to comparatively to others as well। हमारे पास कुछ रिलेशंस थे, we have seen it so far। तो ये आप तो देख रहा हो, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, याद करने पर से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। Okay, so now train features is equal to train dataset dot copy. Now test feature is equal to test dataset dot copy. Train label is equal to train features dot pop. MPG and test label is equal to test features dot pop। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग सिंपली स्प्लिट कर रहे हैं फीचर्स को फ्रॉम लेवल। हमारे पास लेवल क्या आता है, एमपीजी। हमें एमपीजी प्रिडिक्ट करना है। व्हाट इज एमपीजी? माइल्स पर गैलन, ठीक है।
हमने उसको कर दिया रिमूव यहाँ से। कैसे रिमूव कर दिया? हमने इसकी एक कॉपी तैयार की। अब यहाँ पे ना बहुत लंबी लंबी कर रखी है बिला वजह। अब इनकी चाहते तो हम लोग सिंपली वही करते हैं, ट्रेन टेस्ट प्लेट, और वो चार एक ही लाइन में सारे अलग हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा लंबा काम कर रखा है। ट्रेन टेस्ट डॉट कॉपी, और यहाँ पे ट्रेन फीचर्स पे चला गया वो, ठीक है ना। पे टेस्ट फीचर्स इज इक्वल टू ट्रेन डेटा सेट डॉट कॉपी। तो सही है भाई, कॉपी बना के आपने यहाँ भेज दी है। फिर आप यहाँ क्या करो, ट्रेन लेवल्स के अंदर आपने एमपीजी निकाल दिया है। और चलो भाई, एमपीजी निकाल दिया, फिर क्या किया हमने? ओके, टेस्ट लेवल में से भी आपने एमपीजी निकाल दिया, तो फिर हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ऑलराइट, लेट मी सी इट अगेन। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ओके ओके, वी आर नॉट एक्चुअली ड्रॉपिंग दिस एमपीजी हियर, as far I know। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ओके, लेट मी सी दैट। ओके, लेट मी सी व्हाट इज दिस डूइंग मैन। इतनी कॉम्प्लेक्स इस सेंटेंस में लिखा हुआ है। आई डोंट वांट टू मेक कंफ्यूजन फॉर यू गाइस। चाहिए डायरेक्ट मुझे ना टेंसरफ्लो की वेबसाइट पे ले गया। चाहिए टेंसरफ्लो की वेबसाइट पे मौजूद है। वाह गाइस, यू कैन सी दिस हियर एज वेल, मौजूद है ये। मुझे तो ये देखना था कि ये कर क्या रहा है। ओके, लेट मी सी इट। वी आर नॉट हैविंग, ओह वाओ मैन, ये तो पूरी की पूरी नोटबुक यहाँ भी पड़ी हुई है। ये तो मुझे इतना घुमा कर देने की क्या जरूरत थी? मुझे एक वेबसाइट दे देते डायरेक्ट, मैं यहीं से उठा लेता। ऑल राइट, मैंने कहा शायद मैं मुझ अजीज को इतनी अच्छी नोटबुक मिली है। ओके, ऑल राइट, ज़्यादा नीचे आ गए, वापस ऊपर चलो। ओके 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 ओके, यार लेकिन डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अच्छी लिखी हुई है। नहीं, इसकी डिस्क्रिप्शन भी वही है। सो इसको देख लेंगे बाद में क्या कर रहा है। बट एज फार आई नो, ये कर कुछ नहीं रहा है। यहाँ पे हमारे पास फीचर सेट्स आ गए हैं, और यहाँ पे हमारे पास लेबल्स आ गए हैं। यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं ना, हम भी इतनी जो ख्वारी कर रहे हैं। यहाँ प्रिंट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है। ऑल राइट, सो लेट्स सी। प्रिंट तो हमारे पास प्रिंट प्रिंट एफ है ना, एक बहुत अच्छा हमारे पास सीम होता था। अच्छा जी, ओके, ट्रेन फीचर्स एंड इज इट रनिंग और नॉट? ओके, मुझे आप समझ में आ गई सारी कहानी। देखा, इस तरह से इंस्पेक्शन होती है इतनी फास्ट। अभी आप लोग होते तो लगे रहते हैं, अभी इंटरनेट पे घूम जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ पढ़ के सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के देखता है यार हमने पढ़ा क्या था। सो ऑल राइट, ट्रेन फीचर्स इक्वल टू ट्रेन डेटा सेट डॉट कॉपी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे मैंने कॉपी डाल दी, किसके अंदर? ट्रेन फीचर्स में डाल दी है। अब हमारे पास यहाँ पर आ गई है। ये पॉप ना बड़ा कमाल का फंक्शन है। ये अब मैं उसको यूज़ करूंगा, मैंने अब सोच लिया अब, ताकि मेरी भी अच्छी हो जाए ये पॉप है कोई पाइथन या पांडास का कोई बेसिक वो मेथड। अभी कर क्या रहा है यहाँ पे? ये पॉप जो है, ये एक्चुअल ट्रेन फीचर में से एमपीजी को निकाल रहा है। एक्चुअल में से भी निकाल रहा है, और निकाल के किस में डाल रहा है? ट्रेन लेबल में डाल रहा है। ये बहुत बेहतरीन मुझे फंक्शन लगा। हमने पहले इस पूरे को व्यू करा ट्रेन फीचर्स को, और हमने देखा कि इसके अंदर हमारे पास एमपीजी नहीं था। तो ये क्या हुआ हमारे पास कि ट्रेन फीचर में से इसने एमपीजी ने उसको डेटा डेटा ट्रेन फीचर में से उस एमपीजी वाले कॉलम को ड्रॉप कर दिया। कहाँ डाल दिया? ड्रॉप करके कहाँ रिटर्न कर दिया? ट्रेन लेवल्स में कर लिया। मतलब एक तीर से दो शिकार हो गया हमारे पास। तो सेम वी आर परफॉर्मिंग हेयर एंड सेम वी आर परफॉर्मिंग हेयर। एंड आई गॉट अ क्वेश्चन दैट व्हाई वी डिडंट यूज स्प्लिट टेस्ट, या ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने इसलिए यूज नहीं करा बिकॉज दिस इज नॉट माई नोटबुक, दिस इज गूगल्स नोटबुक। ऑलराइट, ओके, लेट्स सी। यहाँ पे हम लोग लेबल्स आएगा हमारे पास। यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम होगा, अगर किसी को कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे हमारे पास एमपीजी का पूरा कॉलम है। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ, कहीं आप लोग बाद में बोलो यार समझ नहीं आया। हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा कॉलम है जो एमपीजी कॉलम है। यहाँ पे नाम लिखा रहा है एमपीजी, पूरा का पूरा एमपीजी कॉलम हमारे पास यहाँ पर आ गया विद डिफरेंट इंडेक्सेस। एंड देन वी आर हैविंग
सस्टेन फीचर को भी दोबारा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे हमारे पास विदाउट एनी एमपीजी वैल्यूज आ गई। आई जस्ट गॉट द सेम एंड गुड थिंग, मुझे सही पता चला है। ऑलराइट, सो जस्ट रिमेंबर दिस इन माइंड, यकीन लिख लें इसको भी। Normalization, all right. Normalization is the very useful part of a data set. Train data set to describe dot transpose mean std क्या ख्वारी किया इन लोगों ने। अच्छा, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जितने भी कॉलम्स थे हम उन तमाम कॉलम्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर रहे हैं। ट्रांसपोज अप्लाई क्या कर रहे हैं भाई, हमने स्ट्रेटेजी दी है मीन की और एसटीडी। व्हाट इज एसटीडी? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी हर कॉलम का हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? बेसिकली जो बेसिक नॉर्मलाइजेशन है जो सबसे पहले इस दुनिया में आई होगी या डीप लर्निंग की वर्ल्ड में आई होगी, वो यही था कि भाई मीन को ना आप डिवाइड कर दो किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन से। उससे क्या होता है, सॉरी, इससे क्या होता है कि हमारी वैल्यूज 0 और 1 के दरम्यान लाया करती हैं। या सो ये हमारा तरीका है। तो हमने यहाँ पे सबके मीन भी निकाल लिया और यहाँ पे हमने सबके एसटीडी भी निकाल लिया। हमें देख लिया कि भाई क्या क्या सिनेरियो है। नाउ देख लेते हैं भाई इन्होंने क्या लिखा हुआ है। It is a very good practice to normalize features that use different scales and ranges, of course. As I have told you many times, कि अगर हमारे पास डेटा सेट के अंदर डिफरेंट कॉलम्स हों और उनकी रेंजेस वराय कर रही हों, so it's a good practice to normalize those. One reason this is important because the features are multiplied by the model weights. So the scale of the outputs and the scale of the gradients are affected by the scale of the input. Although a model might coverage without feature normalization makes training model much more stable. जैसा कि मैंने आपको कहा कि भाई नॉर्मलाइजेशन के बगैर ही मॉडल एक्सेप्ट कर लेगा आपकी कहानियों को। बहुत सारे लोगों ने जो रिग्रेशन परफॉर्म की होगी ना, वो शायद ऐसे ही की हो कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन चले गए हो भाई, उन्होंने बोला हम झंडा गाड़ेंगे आराम से, तो कर ली होगी उन्होंने। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ जाएं, मल्टीपल रेंजेस आ जाएं, मल्टीपल कॉलम्स आ जाएं, सो देन यू मस्ट हैव टू नॉर्मलाइज, ताकि आपके पास इनपुट अगर डाटा स्केल्ड होगा, आपके पास इनपुट का डाटा ही स्टेबल आएगा। तो जब वेट्स की मल्टीप्लिकेशन, ग्रेडियंट्स जब आपके पास बन रहे होंगे, ग्रेडियंट डिसेंट जैसे मैंने बताया था आपको, तो वो अफेक्ट नहीं हो रहा होगा। जितनी ज़्यादा बैक प्रोपगेशन हो रही है, मतलब जितनी ज़्यादा हर इपॉक पे उसके वेट्स इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। अदरवाइज मॉडल वेट्स एंड ग्रेडियंट कैन बी affected. So the scale of the outputs and the scale of the gradients are affected by the scale of the input. यहाँ पे लिखा हुआ है। Although model might coverage without feature normalization, but normalization makes a training model much more stable. चलो भाई स्टेबल करते हैं इस मॉडल को। अच्छा, यहाँ पे ना टेक्निक डिफरेंट होती है डीप लर्निंग में। मुझे नहीं पता इन्होंने क्या इस्तेमाल किया। हम लोग डीप लर्निंग का जो मॉडल बनाते हैं उसी की मॉडल के अंदर ही अपना प्री प्रोसेसिंग टेक्निक डाल देते हैं। डाटा जब ट्रेन होता है तो प्री प्रोसेस होकर ही ट्रेन होता है। उसका फायदा ये भी होता है कि जब आप मॉडल सेव करते हो ना अपने पास फॉर लेटर यूज, तो उस मॉडल को आप बाद में यूज कर सकते हो फॉर वन मोर थिंग। फॉर एग्जांपल मैंने क्लासीफायर या रिग्रेसर बनाया और मैंने उसको सेव कर लिया, ताकि हर दफ़ा ट्रेन थोड़ी करूँगा, अब मैं उसको अपनी वेबसाइट पर कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो वहाँ पे उसके अंदर ही, मॉडल के अंदर ही नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज हुई हुई होती है। वी डोंट हैव टू डू अ लॉट थिंग्स ऑन देयर। तो देखते हैं भाई अगर यहाँ पे इन्होंने किया नहीं कहीं, बट आई एम नॉट श्योर यार। So the pre-processing dot normalization layer is a clean and simple way to build that pre-processing into a model. The first step is to create the layer. Normalizer, अच्छा, I am not going to stop here for all the time, जैसे मैं पहले रुकता रहा, because this is a very limited time today we are having. Workshop is a little bit long. You can repeat my workshop hereafter. Now I'm promise I will upload video pretty soon. टीम भी क्या करे, मेरी वीडियो अपलोड टीम करती है, बट वीडियो ही नहीं रही मेरे पास, तो लास्ट की 2 वीडियोस बहुत देर से अपलोड हुई थी। सो द नॉर्मलाइजर इज इक्वल टू प्रीप्रोसेसिंग डॉट नॉर्मलाइजेशन। हमने अब एक फंक्शन बना लिया हमेशा की तरह। ये कहाँ से बनाया हमने? ऊपर टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट एक्सपेरिमेंटल से हमने इंपोर्ट किया था प्री प्रोसेसिंग। उसका एक मेथड है नॉर्मलाइजेशन, बिल्ट इन मेथड है, गुड। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं किस पे? ट्रेन फीचर्स के ऊपर। भाई हमने बना दिया कि नॉर्मलाइजर डॉट अडॉप्ट np-array डॉट ट्रेन फीचर। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा हमारे पास कि जब भी हमारे पास ट्रेन फीचर्स आ रहे होंगे ना, पहले तो वो कन्वर्ट हो रहे होंगे इसमें numpy array के अंदर। हमारे पास वो डाटा फ्रेम में था, numpy array में कन्वर्ट होंगे।
numpy array में कन्वर्ट होने के बाद उसके ऊपर वो नॉर्मलाइजेशन फंक्शन अप्लाई होगा। जैसे हमने आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती है डॉट अप्लाई के नाम से होती है, यहाँ पे डॉट अडॉप्ट के नाम से हुई हुई है। यहाँ पे लिखा अभी देन डॉट अडॉप्ट रिट्रीव डेटा, तो मतलब बेसिकली टेक्निक इस पे डाटा पे अप्लाई हो रही है। सो दिस कैलकुलेट्स द मीन एंड वेरिएंस एंड स्टोर्स देम इन द लेयर। ऑलराइट, तो हमने क्या किया यहाँ पे प्रिंट नॉर्मलाइजर डॉट मीन डॉट नम्पाई। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम इसको नॉर्मलाइजर से मीन निकाल रहे हैं और उसका नम्पाई निकाल रहे हैं। मैं समझ गया उसकी सारी कहानी क्या हो रही है यहाँ पे। ये हर कॉलम का मीन आ रहा है हमारे पास ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से नॉर्मलाइज होने के बाद या शायद उसके अलावा मीन आ रहा है, और हमने उसकी एक लेयर बना दी है नंबर लेयर, जहाँ तक मुझे मुझे मालूम है। नहीं तो आप लोग चेक कर लिया खुद से क्या कर रही है। when the layer is called, it returns the input data which with each feature independently normalized. all right, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इज इक्वल टू, अगर कुछ बात भी नहीं समझ में आएगा तो सबसे एंड में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। फर्स्ट इज इक्वल टू एन numpy डॉट एरे ट्रेन फीचर्स, और यहाँ पे हमने डाल दिया है वन, मतलब स्टार्टिंग से लेके वन तक, मतलब एक ही चारा ही, एक ही मतलब मेरे पास वो हो कॉलम हो। ट्रेन फीचर्स हमारे पास डाल दिए फर्स्ट डॉट numpy डॉट ओके विद numpy डॉट प्रिंट ऑप्शंस precision is equal to true, suppress is equal to true, print first example first। क्या हो रहा है यहाँ पे, जरा मुझे देखने दें। print normalized, ओके, तो हमने ऊपर क्या किया नीचे क्या किया मुझे अब समझ में आया। ओके ओके ओके, आई जस्ट अंडरस्टैंड दैट कोड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम लेयर की कुछ इंडिपेंडेंट इन फर्स्ट इनपुट फीचर्स यहाँ पे हमने कॉल कर दिए, मतलब पहली रॉ देख रहे हैं हम, पहली रॉ चेंज होने के बाद कैसी लग रही है। दिस इज कॉजिंग मी सम हीट, सो ऑलराइट, सो ओके। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं, लेट मी नो इफ माय वॉइस इज नॉट डिस्टर्ब। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा पहली रो है, उसमें वैल्यूज थी 490 75 2125 14.5 74 001। जो आखिर की 001 है ये वही होंगी रीजनल। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो को आ गई है, उस पर जब हमने नॉर्मलाइजर अप्लाई कर दिया है, नाउ आवर वैल्यूज आर रिड्यूस्ड। कितनी हो गई है भाई, कुछ 01 01 10 इस तरह से हमारी कुछ वैल्यूज बन रही हैं आफ्टर अप्लाइंग द नॉर्मलाइजर। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल में ऐसा एक्चुअल डेटा सेट था और हमारे पास नॉर्मलाइज होने के बाद हमारा डेटा सेट ऐसा हो गया। चलो अच्छा हो गया, देख लिया। ये होती है बेसिकली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये रियल डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। अब तक हमने ना इस तरह की एक्सपेक्शन की ही नहीं है प्रोफेशनलिज्म, ये गूगल में इस तरह ही काम हो रहा होता है। एक एक चीज को देखे बगैर वो मॉडल ट्रेन नहीं करते, वो बहुत टाइम लगाते हैं अपने डाटा के ऊपर। नाउ बिफोर बिल्डिंग अ डीएनएन मॉडल स्टार्ट विद अ लीनियर रिग्रेशन। तो ये चाह रहा है कि हम पहले मल्टीपल फीचर्स को ट्रेन करने से पहले हम एक सिंगल वेरिएबल को ट्रेन करें। लेट मी सी इज देयर एनी क्वेश्चन। ऑल राइट, नो क्वेश्चंस। Okay, number of attendees just increased. Okay, good. But you are guys late party. Before building a DNN model, start with a linear regression. Okay, start with a single यहाँ पे उन्होंने मजीद लिख दिया एक ही बात को। Start with a single variable linear regression to predict MPG from horsepower। Documentation है basically ये इनकी। Training a model with TF.Keras typically starts by defining the model architecture. In this case, use a Keras.sequential model. This model represents a sequence of steps. In this case, there are two steps: normalize the input horsepower, apply a needed transformation y is equal to mx plus b to produce one output string layers or tens. Okay, the number of inputs can either be set by the input shape argument or automatically when the model is run for the first time. All right, so first create the horsepower normalization dot layer. Let me see who is calling me at this time. I hope that's not. Let me tell him that I am busy. Just wait. All right, guys. So I hope you guys have in mind for this, just for having a 10-second break for, because that was from my father actually. So I just inform him.
ओके सो फर्स्ट क्रिएट द हॉर्स पावर नॉर्मलाइजेशन लेयर। अब यहाँ पे ना हमने असल काम हमारा अब शुरू हुआ है। यहाँ हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वही हम उसको यहाँ पे कोड में लिख रहे हैं। अप्लाई अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये हमारा वही स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन हमारी रिग्रेशन की जो बनेगी। ओके हॉर्स पावर इज इक्वल टू नंपाई डॉट एरे ट्रेन फीचर्स हॉर्स पावर। हमने हॉर्स पावर नाम वेरिएबल के अंदर तमाम का तमाम वो डाटा, सिर्फ वही पर्टिकुलर कॉलम हम चाहें तो हम सेपरेटली भी फीचर्स के अकॉर्डिंगली कि रिग्रेशन कितना अच्छा परफॉर्म हो रही है हम चेक कर सकते हैं। सो वी सॉ कि भाई हम देखेंगे अभी आगे। हमने हॉर्स पावर के अंदर डाल दिया एक सिर्फ हॉर्स पावर का कॉलम। Then we are applying the pre-processing technique on this. What we are doing here, horsepower normalizer is equal to pre-processing dot normalization. Input shape is equal to 1 comma. All right. हमने यहाँ पे इनपुट शेप डाल दी है। ओके यहाँ पे हमने हॉर्स पावर नॉर्मलाइजर डाल दिया है, सही है। हमने यहाँ पे एक बेसिकली क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया किसके लिए, हॉर्स पावर के लिए। तो हमने इसका नाम ही हॉर्स पावर नॉर्मलाइजर डाल दिया क्योंकि आगे जाके हम दूसरा नॉर्मलाइजर बनाएंगे जो इसमें हमारे पास मल्टीपल इनपुट शेप्स आ रही होंगी। यहाँ हमारे पास मल्टीपल इनपुट शेप नहीं है, हमारे पास एक ही इनपुट शेप है। ऑलराइट, हॉर्स पावर इज कॉमा सॉरी हॉर्स पावर अंडरस्कोर नॉर्मलाइजर डॉट एडॉप हॉर्स पावर। अब ये क्या कर रहे हैं हम इसके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। डॉट एडॉप्ट क्या कर रहा होता है हमारे पास, बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा होता है। यहाँ पे आप डिस्कशन पूछ सकते हो फिट्स द स्टेट ऑफ द प्री प्रोसेसिंग लेयर टू द डाटा बीइंग पास्ड, तो blah 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 blah। ऑलराइट, तो बिल्ड द सिक्वेंशियल मॉडल। अब हमारे पास ना हमेशा याद रखना तीन तरह के मॉडल्स होते हैं, तीन चार तरह के होते हैं। सिक्वेंशियल होते हैं, फंक्शनल होते हैं, हाई फंक्शन एपीआई अगर आपने सुना हो, और कस्टम कस्टम भी होते हैं हमारे पास। कस्टम जो होता है ना बहुत एडवांस एआई है, वो आपके डीप लर्निंग प्रोग्राम में भी शायद ना आए, वो बहुत ज़्यादा एडवांस एपीआई है। तो फिर हम उसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास फंक्शनल एपीआई है, तो उस पर भी हम काम नहीं करेंगे सिंस वी आर राइट नाउ नूब्स। तो हम उस पर किस पे काम करेंगे, सिक्वेंशियल पे काम करेंगे। दीज आर जस्ट सिक्वेंशियली फॉर्म। Why my mic is mute? All right. So what we're gonna do here, अभी हम लोग sequential पे काम करेंगे and we just added two layers here. See this, this is very important part. Horsepower underscore normalizer, comma layers और dense units is equal to 1. अब units is equal to 1 हमारे पास क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूरॉन है। भाई छोटी सी रिग्रेशन है, 400 लॉस की है, उससे भी कम की, तो एक न्यूरॉन बहुत है। अब जब हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते ना कि हमारे पास किस टाइप की लेयर है, तो वो हमेशा कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करती है, बाय डिफॉल्ट लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करती है। एक्सक्यूज मी। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है लीनियर हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है। अब दो लेयर कौन सी है हमारे पास, वो आया था हमारे पास हॉर्स पावर अंडरस्कोर नॉर्मलाइजर। ये क्या कर रहा होगा, जो डाटा इनपुट होगा हमारे पास वो उसको सारा का सारा नॉर्मलाइज कर रहा होगा। ठीक है, फिर हमारे पास मजीद वो आगे गया, एक लेयर और थी हमारे पास, लेयर जो डेंस, वो उसके ऊपर बाय यूजिंग लीनियर फंक्शन उसके ऊपर लीनियर फंक्शन अप्लाई कर रहा होगा जो कि है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर आपको याद हो। तो वो एक्टिवेशन फंक्शन इस पर अप्लाई हो रहा है और हमारे पास फिर आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। ज़्यादा लेयर्स हमारे पास इस एक कॉलम के लिए नहीं है। अब अगर हम ये मॉडल बना, अभी हमने ट्रेन नहीं करा मॉडल, अभी हमने सिर्फ मॉडल बिल्ड करा है। पहले हमने खुद से मॉडल बनाया, अब हम ट्रेन आगे जाके करेंगे। अब जरा समरी चेक कर लेते हैं क्या है भाई। हमने बोला कि मॉडल डॉट समरी देख ली, तो हमने देखा यहाँ पे कि मॉडल का नाम है सिक्वेंशियल 4। ओके, नॉर्मलाइजेशन अंडरस्कोर 3। तो यहाँ पे भाई हमारे पास आउटपुट शेप 1 है। यहाँ पे 3 पैरामीटर कुछ चल रहे थे इसके अंदर, फिर 2 पैरामीटर चलने लग गए, ठीक हो गया। फिर हमारे पास 1 1 1। ओके, डेंस 8 है, ये सारी डिटेल्स हैं, ये आपको कभी बाद में बहुत अच्छे से पढ़ना सिखाऊंगा। सो ट्रेनेबल पैरामीटर हमारे पास 2 थे, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर हमारे पास 3 थे, टोटल पैरामीटर हमारे पास 5 थे। तो ये हमारे पास एक मॉडल समरी थी जो इसने जस्ट मालूम करके बताई है। अब ये नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर कौन वो से वो हैं,
जो ये 3 पैरामीटर हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अब ये वो 3 पैरामीटर कौन से हैं? ये वो 3 पैरामीटर्स किसके हैं? नॉर्मलाइजेशन के। ये ट्रेन थोड़ी होंगे। ट्रेन क्या हो रहा होगा हमारा? जो एक्चुअल न्यूरॉन बेस्ड लेयर्स होंगी, जो प्री प्रोसेसिंग की लेयर है, जो नॉर्मलाइजेशन की लेयर है, वो हमारी ट्रेन नहीं हो रही होगी। ठीक है, उसको वो बोलेगा भाई ये नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स है हमारे पास। और आउटपुट शेप क्या है हमारे पास? भाई एक न्यूरॉन से एक ही निकल के बाहर आ रही है वेट वेक्टर। मल्टीपल वेट वेक्टर्स हमारे पास नहीं है। लेट मी सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। ओके, इट्स रियल टाइम राइट? ओके, गुड. So this model we predict MPG from horsepower. So now we are run the untrained model on the first 10 horsepower values. अच्छा, ये जो है ना, ये हम नहीं करते वैसे, मैं तो बिल्कुल नहीं करता ये टेक्निक, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों करते हैं। मे बी टू सी कि इफ our output is not good, so we gonna see that our if our shape of our output values are not good, तो मतलब मॉडल हमारा अच्छा बना ही नहीं है। सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आउटपुट वॉन्ट बी गुड, बट यू विल सी दैट इट हैज द एक्सपेक्टेड शेप 10,1। हमने 10 वैल्यूज दी थी, जाहिर आउटपुट में उसने एक ही वैल्यू प्रेडिक्ट करनी थी, तो आउटपुट शेप हमारी 10,1 ही बनेगी। आंसर्स हमारे अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं क्योंकि मॉडल अभी ट्रेन नहीं हुआ है, सीखा नहीं है उसने, वो सब तुक्के लगा रहा है। लेकिन उसको ये पता है कि भाई आंसर मैंने एक ही निकालना है सबका, वो अपनी मर्जी से उसने आंसर बता दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि भाई हाँ, ये मॉडल आराम से ट्रेन हो जाएगा। अब ये क्यों चेक करते हैं छोटे से अमाउंट के डाटा सेट के ऊपर? यही प्रैक्टिस वहां होती है जब आपके पास डाटा सेट बहुत सारा होता है ना, लाइक यू आर हैविंग मिलियंस ऑफ थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड डाटा सेट, और आपको नहीं पता कि भाई 6 दिन लगेंगे आपके मॉडल को ट्रेन होने के अंदर, एंड आफ्टर 3 days इट एक्सप्लोड्स। मतलब 3 days के बाद आपको लगता है कि आपका डाटा सेट ना एकदम मॉडल ट्रेन होते 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 फट गया। मतलब फटने से मेरा क्या था, ब्रेक हो गया है, रुक गया है। सो उस ब्रेक को बचाने के लिए, चेक करने के लिए कि भाई आउटपुट शेप हमारे पास एग्जैक्ट आ रही है, जो आनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट शेप आ रही है हमारे पास अनट्रेड मॉडल पे, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो ये वो एक टेक्निक है जो इन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। गुड है, अच्छा है, एक्सपेक्शन सिनेरियो में आ गया ये चीज़। So they have done everything very professionally. Okay, so once the model is built, configure the training procedure using the model.compile method. The most important arguments to compile are the loss and optimizer, since these define what will be optimized, mean, absolute error, and how using the optimizers.atom. अब हम मैंने आपके इत्तेफाक से एडम पढ़ाया नहीं है, और ये लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? एडम यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो एडम खुद से पढ़ सकते हो, एडम ऑप्टिमाइजर। नहीं, अगर आपको समझ में आएगा तो मुझे बता दिएगा लाजमी, तो फिर मैं कल ही या परसों में पढ़ा दूंगा, कल परसों में कभी ना कभी वो पढ़ा दूंगा, या फिर उसको कोई ट्यूटोरियल जो जिससे मुझे अच्छा लगेगा वो शेयर कर दूंगा। तो एडम खुद से पढ़ लीजिएगा, ग्रेड डिसेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ। सो आई वॉन्ट टू रन लिटिल बिट क्विकली नाउ। ओके, अब हॉर्स पावर मॉडल डॉट कंपाइल, यहाँ पे हमने लिखा ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू टी एफ डॉट ऑप्टिमाइजर्स डॉट एरम लर्निंग रेट 0.01। वहाँ पे तो हम पहले जो फर्स्ट वर्कशॉप की थी बहुत आसान थी, उसमें आपने कंपाइल के वक्त ऑप्टिमाइजर और लर्निंग रेट डाल के चला दिया था। यहाँ पे हमने पूरा एक मॉडल डॉट कंपाइल लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू टी एफ डॉट ऑप्टिमाइजर डॉट एडम। टेंसरफ्लो का अपना एक ऑप्टिमाइजर है एडम, तो ये हम वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और लर्निंग रेट हमने दे दिया क्या है, 0.1। तो वो जो लर्निंग रेट उसका होगा उस ऑप्टिमाइजर का, वो 0.1 रेट होगा। देन वी आर हैविंग हॉर्स पावर मॉडल डॉट कंपाइल, के अंदर हम एक चीज़ और आ रही है हमारे पास, लॉस फंक्शन, विच इज मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, हमारे पास मीन स्क्वायर्ड एरर था। व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वेशन? मीन एब्सोल्यूट एरर, तो यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन देखनी हो तो यहाँ पे आप इक्वेशन देख सकते हो कि ये हमारा प्रेडिक्शन है, टू वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है। मे बी आई डोंट नो व्हाई दे हैव यूज्ड दिस, शायद इससे ज़्यादा अच्छी वैल्यूज आ रही हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा लॉ एरर पता लग रहा हो, दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक। बट वी यूज मीन स्क्वायर्ड एरर। देख लूँ कि कहीं दोनों सेम तो नहीं है। नो, बोथ आर वेरी डिफरेंट। अच्छा, मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा ना हमारे पास, अब इसमें स्क्वायर नहीं हो रहा होगा हमारे पास, अब एक्चुअल वैल्यूज आ रही है। स्क्वायर में तो ये होता था कि 2-3 नंबर को इतना बढ़ा कर दिखा दिया करता था हमको, तो हमें पॉइंट्स की भी ना डिफरेंस मालूम होता था। यहाँ पे वो टेक्निक हमारे पास नहीं हो रही है। यहाँ पे इनका इस्तेमाल करेंगे, अभी हम नहीं चाहते कि कोई कोड वोड में मसला हो जाए, सो वी डोंट हैव टाइम टू बेयर दैट। आवर वर्कशॉप इज ऑल्सो एट द एंड।
तो यहाँ पे हमने इसको एक दफ़ा देख लिया। एक दफ़ा ना मैंने कुछ शायद बीच में रन नहीं करे, सबको रन कर लेता हूँ एक साथ, तो ये सब रन होते रहेंगे अपने अपने टाइम पे। ये बेटा, नो, माई क्रोम हैज डाइड, इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, दिस कोलैब इज नॉट वर्किंग, जस्ट वेट फॉर अ मिनट गाइस। All right. So once the training is configured, use model.fit. Wow. अब हम अपने उस पार्ट पर आ गए हैं जहाँ पे हमने model.fit करना होता है। ये एक AI इंजीनियर का सबसे खूबसूरत तरीन पार्ट होता है कि जब उसे खुशी होती है, चलो अब रिजल्ट भले से एक्यूरेसी आपकी 0.1 आ रही है, खुशी होती है कि यार model.fit कर लिया, मतलब मैं अपना एक टियर प्रोड्यूस कर चुका हूँ, एक टियर परफॉर्म कर चुका हूँ। ऑलराइट, सो ट्रेन फीचर्स, यहाँ पे हमने हॉर्स पावर डाला, देन हमने ट्रेन लेवल्स, और यहाँ पे हमने epochs डाले 100। आई डोंट नो व्हाई दे हैव जस्ट 100, वेरी पुअर वैल्यू। ओके, सरप्रेस लॉगिंग, ये देख लीजिएगा आप खुद से क्या है ये लॉगिंग होती है, मैं आपको बाद में बता दूंगा व्हाट इज दिस। ओके, वैलिडेशन स्प्लिट 0.2, ये वही है कि हमारे पास जो वैलिडेशन के लिए जो डाटा स्प्लिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। अच्छा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वैलिडेशन एंड टेस्ट डाटा। वैलिडेशन जो होता है कि ट्रेनिंग के वक्त ही वो डाटा स्प्लिट कर लेगा, मतलब अब आप यूं देखो, 80% डाटा हमारे पास पहले ही अलग हो गया था, 20% डाटा हमारे पास पहले ही अलग हो गया था। अब उस 80% डाटा के अंदर से भी 20% डाटा वो होगा जो अपने ट्रेन होते वक्त वो अलग से चेक कर रहा होगा, तो ये वो सिनेरियो है। अब जब आप यहाँ पे वैलिडेशन स्प्लिट कर दोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास वो ट्रेनिंग के वक्त भी एक जनरलाइज फॉर्म फैक्टर में डेवलप हो रहा होगा और उससे कंपेयर कर रहा होगा फॉर अ लॉस। और अच्छा, यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है ना, परसेंट परसेंट टाइम, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये हमें सिर्फ बता रहा है कि कितना टाइम लग रहा है। ओके, visualize the model's training progress using the stats stored in the history object. ओके, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने सारा का सारा स्टैट जो है हिस्ट्री में सेव करवाया। हमने मॉडल डॉट फिट करने के बाद क्या किया, उसको हिस्ट्री में स्टोर करवा दिया, तो हम हिस्ट्री से विजुलाइज भी कर सकते हैं। हाउ टू डू दैट, मॉडल जिसमें भी आप ट्रांसफॉर्म कराते हो ना, तो उसका एक एट्रीब्यूट होता है हिस्ट्री, जो आप यहाँ पे देखोगे हिस्ट्री नाम दिया हुआ था हमने और उसके एट्रीब्यूट हिस्ट्री भी होता है। तो ये बेसिकली वो वेरिएबल था और ये उसका एट्रीब्यूट हिस्ट्री है यहाँ पे। सो वी आर पासिंग दिस एंटायर थिंग। अभी ऑब्जेक्ट में थी, ये किस में थी, डिक्शनरी में, यहाँ पे लिखा रहा है डिक्शनरी में था हमारे पास। ये देखो लॉस वगैरह ये सारा डिक्शनरी में थी हमारे पास। हम वी आर कन्वर्टिंग दिस एंटायर इनटू डाटा फ्रेम इनटू हिस्ट। फिर हमने हिस्ट का इपॉक जो था उसको, अब हमारे पास एट अ टाइम जो होता है ना लॉस और वैलिडेशन लॉस आता है, हमारे पास इपॉक्स नहीं आते। उसके लिए आपको हिस्ट्री डॉट इपॉक अलग से लिखना पड़ता है, तो आपको हर टाइम अलग अलग इपॉक की हिस्ट्री भी आएगी। तो हमने वो अलग से ऐड कर दिए एक अलग कॉलम के अंदर, एंड देन वी विजुअलाइज लास्ट फ्यू रोज ऑफ आवर डेटा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये उसका लॉस था जो ट्रेनिंग डेटा के सेट के साथ कंपैरिजन में आया, और ये उसका लॉस है जो वैलिडेशन सेट के साथ पे आया। अब वैलिडेशन लॉस ज़्यादा है, इसका मतलब मॉडल इज इन इटसेल्फ इट्स नॉट वर्किंग सो गुड, बट वील सी दैट। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज ऐसे खास फर्क नहीं पड़ेगा मेरा नहीं ख्याल, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ एरर वी आर हैविंग हियर। सो अब जाहिर सी बात है ये मल्टी वेरिएट रिग्रेशन थी, ये एक रिग्रेशन के ऊपर बेस नहीं कर रहा। सो वील सी डेफ प्लॉट, डेफ प्लॉट लॉस हिस्ट्री। यहाँ पे हमने पूरा फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स आ गए, हमने उसको एक अलग से लेबल दे दिया लॉस को, उसको प्लॉट कर दिया है। फिर हिस्ट्री का ये एट्रीब्यूट आ गया हमारे पास, हम उसको उसका ये कॉलम होगा वैलिडेशन लॉस का, उसका एट्रीब्यूट भी हमने लेबल भी दे दिया भाई वैलिडेशन लॉस। हम दोनों की प्लॉटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे उसकी मेरे ख्याल से ये रेजोल्यूशन है क्या है, आई डोंट नो, आई गेस लिमिट है। y की मैक्सिमम लिमिट 10 होनी चाहिए, मतलब हम y की यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट, लेट मी मेंशन हियर लिमिट ऑफ y एक्सेस। अब हमारी वैल्यूज चाहे 0 से 100 तक आ रही हो, लेकिन वो 0 से y तक का ही पोर्शन दिखाएगा, 0 से 10 तक का ही पोर्शन दिखाएगा। प्लॉट डॉट एक्स लेवल हमने इपॉक डाल दिया है, प्लॉट डॉट वाई लेवल हमने एरर डाल दिया। बेसिकली पर इपॉक हम देख रहे हैं और वाई एक्सेस पे हम क्या देख रहे हैं, एरर रेट देख रहे हैं कि एरर कितनी तेजी से हमारा अच्छा तरीके से रिड्यूस हुआ है। pld डॉट लीजेंड डाल दिया तो हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी साइड में, एंड देट हैव ऐड pld डॉट ग्रिड, तुम्हारे पास प्लॉट में ग्रिड भी ऐड हो जाएगी। अभी सब हम देखते हैं, यहाँ पे ग्रिड भी ऐड हो गई है, हमारे पास लेजेंड भी आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई है।
10 तक लिमिट हमारे पास, ठीक है, हमने प्लॉट कर दिया पूरी हिस्ट्री को। एंड देन वी आर हैविंग दिस इपॉक्स हियर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा आया ऊपर से, बड़े ही ऊपर से आया कोई, और अचानक से लॉस इतना कम हो गया। ये लॉस कम हो रहा था एकदम से, और फिर ये यहाँ पे आके रुक गया। मतलब अभी लॉस से ज़्यादा कम हो नहीं सकता। तो मतलब ये सही था, उन्होंने 100 इपॉक्स यूज़ किए हुए थे। इट मीन्स by after using 200 300 epochs, it's going to be an overfit model for such a short data set. तो ठीक है, इतना डिफरेंस चलता है अभी फिलहाल। तो हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा था, और ऑल राइट, तो मैंने ये प्लॉट कर लिया। नाउ ब्लू इज रिप्रेजेंटिंग लॉस एंड रेड इज रिप्रेजेंटिंग, ऑरेंज इज रिप्रेजेंटिंग वैलिडेशन लॉस। Validation is loss, something very important. Okay, collect the results on the test set for later. अब हमने यहाँ पे रिजल्ट जो है हम फेच करेंगे। अब कैसे फेच करेंगे, हमने एक डिक्शनरी डेवलप कर ली है, एमडी डिक्शनरी। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट रिजल्ट्स हॉर्स पावर मॉडल इज इक्वल टू हॉर्स पावर मॉडल डॉट इवेल्युएट हॉर्स पावर और उसके लेवल्स। हम क्या कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट्स जो होंगे ना, हम जो वो इवेल्युएशन के वक्त हमारे पास उसके रिजल्ट्स आ रहे होंगे, तो वो हम जैसे ये जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ये स्टैटिस्टिकली हमारे पास किस में परफॉर्म आ जाएंगे, डिक्शनरी में आ जाएंगे टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर। ये मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह दिखता है बाद में, और अदरवाइज यू कैन व्यू दिस राइट नाउ। सिंपल है, प्रिंट करना मुश्किल तो है नहीं, आप हर चीज़ देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी हर चीज़ स्टैटिस्टिकल थिंग्स हैं कुछ हमारे पास आ गई हैं। ये सारी इसकी मॉडल अपनी मॉडल इवेल्युएशन है। टेंसरफ्लो का अपना फंक्शन होता है ये हम आगे जाके और भी डिटेल में पढ़ेंगे। Alright, since this is single variable regression, it's easy to look at the model's prediction as a function of the input. हमारे पास x के अंदर हमने डाल दिया कि भाई TensorFlow डॉट लेंथ स्पेस 00250 251, बाद में हमने डाल दिया है हॉर्स मॉडल डॉट प्रोडिक्ट x। अच्छा, अब हमारे पास ये डेटा हम यहाँ प्रिडिक्ट करेंगे। अच्छा, देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास। ऑल राइट, ठीक हो गया, मुझे समझ में आ गया। तो भाई हमने यहाँ पे एक्स प्लॉट कर दिया 0 से लेकर 250 तक। ठीक है ना, हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज थी हमारे पास जनरेट हो गई, और हम यहाँ प्रेडिक्शन देख रहे हैं यहाँ पे इधर। तो ये हमारे पास हमने वही वही वाला कोड है ये, जो उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके लिखा हुआ है। आपने जो कोड यूज़ किया था ना लीनियर रिग्रेशन के लिए, वो आसान कोड था। आप लोग बिल्कुल वही यूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा आसान रहेगा और अच्छा भी लगता है वो आसान सा कोड यूज़ करना में। तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे ट्रेन फीचर्स करना है हॉर्स पावर के अगेंस्ट ट्रेन लेबल्स। लेबल डाटा डाल दिया आपने, एक्सपायर डाल दिया, कलर डाल दिया, लेबलिंग 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 डिजाइनिंग हुई है सारी, एंड देन वी जस्ट प्लॉट इट। ठीक है, हमने एक्सपायर को प्लॉट कर दिया। तो मतलब हमारे पास डेटा सेट कुछ कर्व था, लेकिन हमारी ये गलती थी कि हमने लीनियर रिग्रेशन यहाँ परफॉर्म कर दिया। पॉलीनोमियल रिग्रेशन परफॉर्म होना चाहिए थोड़ा सा, बट नो वरीज। अभी हम इतना एडवांस नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट टेंसर फ्लो के अंदर खेल रहे हैं। वी आर जस्ट प्लेइंग इन द टेंसर फ्लो। Now what we're gonna do, we're gonna pass some input variable. Don't worry, we are ending. Let me see कितनी रह गई है। So all right, थोड़ी ज़्यादा है। Okay, so थोड़ा तेज चलेंगे और आगे जाके देखते हैं। All right. Now we are gonna, what we're gonna do, we're gonna provide multiple inputs. So this time we use the normalization layer that was applied to the whole data set. यहाँ पे हमने सिंपल नॉर्मलाइजर डाल दिया, पूरा का पूरा डेटा सेट पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम डालते हैं layers dot dense units is equal to 1. When you call this model on a batch of input, it produces unit is equal to 1 output of each example. हमारे पास 1000 वैल्यूज भी आ रही होंगी इनपुट में, लेकिन आउटपुट क्योंकि न्यूरॉन 1 है, तो वो हमारे पास एक ही वेक्टर बेस्ड, हमारे पास एक ही सिंगल बेस हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रहा होगा। तो मतलब हमारे पास जो आउटपुट होगा वो इन अ सिंगल एरे हमारे पास एक्सपेक्टेड आना चाहिए, जब हमने चेक किया था। तो हमने विदाउट ट्रेनिंग यहाँ पे चेक कर लिया कि भाई हाँ 0.805 हमारे पास एक सिंगल, कुछ भी वैल्यूज में मैटर नहीं करता, लेकिन सिंगल हमारे पास शेप में आ रही है वैल्यूज। ये आपको ना नहीं भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इट जस्ट फॉर एन एनालिसिस। यहाँ पे हमने कर्नल व्यू कर लिया। कर्नल क्या है उसको छोड़ दें अभी, कर्नल आगे जाके कर्नल की पूरी क्लास होगी तो अभी समझेंगे। ऑल राइट, लीनियर मॉडल डॉट कंपाइल ऑप्टिमाइजर इज इक्वल टू टी एफ डॉट, ये इससे कुछ नहीं होता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसको आप सिंपली यहाँ से डिलीट भी कर देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूज द सेम कंपाइल एंड फिट कॉल्स एज फॉर द सिंगल इनपुट हॉट पावर मॉडल।
सही है भाई, हम कंपाइल कर लेते हैं। हम लीनियर मॉडल डॉट कंपाइल किया हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइजर डाल दिया। कौन सा? एडम ऑप्टिमाइजर। ये लोग एडम ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं, इसकी कोई वजह होगी। ओके, एंड लॉस इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर। हमने लॉस फंक्शन मेंशन कर दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे। एंड देन सिंपली वही काम जो हम पहले सिंगल इनपुट से किया, हम यहाँ पे मल्टीपल इनपुट से काम कर रहे हैं। एंड वी जस्ट ट्रेन आवर एंटायर मॉडल, और यहाँ पे हमने इसकी हिस्ट्री भी प्लॉट कर दी है। अच्छा, मजे की बात ये है कि यहाँ पे लॉस और वैलिडेशन लॉस दोनों बराबर चल रहे हैं, तो इट मीन्स तो that at some point now our model is very much generalized. At some point model is very much generalized, but still we are having some sort of error. जनरलाइज हमारा मॉडल हो चुका है, लेकिन हमारे पास एरर फिर भी आएगा। उसकी क्या वजूहत है? बिकॉज वी आर हैविंग एरर एट सो मच, 2-3 एरर बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे पास डाटा में हल्का सा कर्व है, लेकिन हमारी रिग्रेशन जो है वो स्ट्रेट बन रही है। अब उसको देखते हैं कि उसको कैसे हम फिक्स करेंगे। उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक आती है, DNN रिग्रेशन, जो कि हम देखेंगे। उसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है भाई यहाँ पे। यहाँ पे वही हम लोग अपने रिजल्ट सेव कर रहे हैं जो हमने ऊपर किया था, सो डोंट वरी फॉर दैट। The previous section implemented linear models for single and multiple inputs. All right. This section implements single input and multiple input DNN models. The code is basically the same, except the model is expanded to include some hidden non-linear errors. All right. So the name hidden here just means not directly connected to the inputs or output. आप लोगों को सब समझ में आ गई है वैसे तो। अब what are hidden layers, और उसमें हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। हम डिग्रेशन में अगर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल कर भी रहे हो ना, तो हिडन लेयर के अंदर हम सिग्मॉइड, रेलू, इस तरह के फंक्शन अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, उसकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर जो है हम आउटपुट में ले आते हैं। रेलू इज द मोस्ट यूज्ड एक्टिवेशन फंक्शन इन दिस सिनेरियोस बाय द वे। तो लेट्स सी व्हाट वी गोना डू हियर। हमने क्या किया यहाँ पे? So these models will contain a few more layers than the linear model. The normalization layer, वही preprocessing वाली हो गई। Two hidden non-linear layer using the ReLU non-linearity. अब एक लेयर से और मल्टीपल लेयर से क्या फर्क पैदा हो सकता है, ये आप लोगों की बहुत परफेक्ट लर्निंग होगी। सिर्फ एक मॉडल का फर्क है, हमारी क्लास खत्म उसके बाद। लीनियर सिंगल आउटपुट लेयर, फिर उसी लीनियर को हम एक लीनियर डेटा के अंदर आगे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट डे पढ़ा था, हमने बैक प्रोपगेशन में भी पढ़ा ये चीज़ को, हमने ग्रेडियंट डिस्क्रिप्ट में भी इस चीज़ को पढ़ा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सारी चीज़ें। डेफिनेशन बिल्ड एंड कंपाइल मॉडल नॉर्म। अच्छा, मॉडल इज इक्वल टू केरास डॉट सिक्वेंशियल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अब एक नॉर्म आ गया हमारा। नॉर्म हमारा क्या था, अगर आपको पता हो, हमारी नॉर्मलाइजर फंक्शन था जो सबसे ऊपर हमारे पास मौजूद है। सो आई होप यू ऑलरेडी नो दैट। तो ओके, बट वेट, ऑल राइट, सही है। यहाँ पे बेसिकली नॉर्म ये है। नो, आई वाज रॉन्ग। नॉर्म हमारे पास ये है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मलाइजर का फंक्शन डाल देंगे ऊपर से, तो मतलब जहाँ भी हम इसको यूज़ करेंगे, बिल्ड एंड कंपाइल्ड मॉडल, हम इसका एक पूरा फंक्शन बना रहे हैं, तो जहाँ भी हम यूज़ करेंगे हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन टेक्निक डाल देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वो यूज़ हो जाएगी। तो मॉडल इज इक्वल टू क्लाउड और सिक्वेंशियल पे हमारे पास यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज़ होगी। अब जब हम कुछ भी करें, ठीक है, अब जब हमारे पे नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज़ होती है ना, तो वो हमारी एज एन इनपुट लेयर काम करती है। याद रखिएगा ये बात, जब हम प्री प्रोसेसिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, सो दैट विल बी काउंटेड एज अ इनपुट लेयर। अब वो इनपुट लेयर काम कर रही है, उसके बाद हमारे पास दो हिडन लेयर है, लेयर्स डॉट डेंस। ठीक है, 64 हमने इसकी शेप दी हुई है, 64, ऑलराइट, pretty much. And then we are having activation। 64 का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। 64 का मतलब यूनिट्स जो हमारे पास, 64 शेप जो हमारे पास उस लेयर की। और एक्टिवेशन फंक्शन हमारा क्या है? रेलू। हम लोग अभी यहाँ पे रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं दोनों की दोनों हिडन लेयर के अंदर। देन वी गोना आउटपुट इट विद अ लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं करा कि एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो लीनियर ही है। देन वी गोना यूज मॉडल डॉट कंपाइल, और यहाँ पे हमने लॉस इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डाल दिया और ऑप्टिमाइजर वो डाल दिया जो हमने पहले यूज करा था। इस दफा हमने लर्निंग रेट थोड़ा कम रखा है। उसकी रीजन ये है कि उन्होंने ट्राई कर रखा है ऑलरेडी, और ये बेस्ट लर्निंग रेट होगा तभी इन्होंने ये रखा है।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास मॉडल रिटर्न कर रहा है। अब ये ना ये प्रोडक्शन लेवल काम है। आपने एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर मॉडल कंपाइल भी हो रहा है, उसी के अंदर मॉडल सिक्वेंशियल लेयर्स डेवलप हो रही है, तो और आपने उसमें सब क्या करना है, नॉर्म पास करना है। ऑल राइट, तो अभी इसको यहाँ पे रोक देते हैं। हमने हमने अपना मॉडल डेवलप कर दिया। अब जब आगे जाके फिट करना होगा तब हम देख लेंगे। वन वेरिएबल, अब क्या हो रहा है, स्टार्ट विद डीएनएन मॉडल फॉर अ सिंगल इनपुट हॉर्स पावर। अब हम पहले हॉर्स पावर के लिए देखते हैं। हमने हॉर्स पावर के लिए देखा, ये बिल्ड एंड कंपाइल मॉडल कहाँ से आया हमारे पास, ये ऊपर से आया, ठीक है, जो हमने बनाया था अभी। और हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, हॉर्स पावर नॉर्मलाइजर। अब हमने इसको अलग से क्यों बनाया, क्योंकि हमें इनपुट के लिए भी काम करना था और आउटपुट के लिए भी काम करना था। अगर हम प्री डिफाइंड नॉर्मलाइजेशन टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए, सो व्हाट विल इट गोना डू, कि हमारे पास दोनों की नॉर्मलाइजेशन टेक्निक डिफरेंट थी एंड दैट गोना ब्रेक आवर कोड। हमारे पास तभी एक जनरलाइज फंक्शन था। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी टेक्निक ट्रांस डाल दी है अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास टेक्निक आ जाएगी, वो टेक्निक चेंज हो जाएगी प्री प्रोसेसिंग की या इनपुट लेयर की, जो भी आप बोल लो, हमारा मॉडल भी चेंज हो जाएगा। अब हमारे मॉडल का नाम क्या है, DNN हॉर्स पावर डॉट मॉडल अंडरस्कोर मॉडल। समरी हमने चेक कर लिया, अब बोल रहा है कि भाई हमारे पास अच्छे खासे पैरामीटर्स हैं, नॉर्मलाइजेशन 5, आउटपुट नन, शेप 1, पैरम 3, डेंसिटी नन 64। ऑल राइट, तो ये हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स आ रहे हैं, ये हमारे पास आउटपुट शेप है इसकी। अब देखते हैं कि इसमें से नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर कौन सा है। ट्रेनेबल पैरामीटर हमारे पास बहुत सारे हैं, वैसे 4 3 5 3, लेकिन नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर हमारे पास सिर्फ कितने हैं, 3 हैं। तो ये कौन से नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर है जो स्टार्टिंग में हमारे पास आ रहे हैं, 3, जो हमारे पास प्री प्रोसेसिंग खुद ही अप्लाई करें एंड देन मॉडल विल नॉट गोइंग टू बी ट्रेन ऑन दोस लेयर्स। ऑल राइट, ओके, वेयर इज माय माउस, ओके, ट्रेन द मॉडल। अब मॉडल ट्रेन कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने टाइम डाल दिया, हमें टाइम बता दिया कितना टाइम लगा है। और हिस्ट्री, अच्छा ये टाइम इसलिए भी यूज़ करते हैं प्रोडक्शन वाले, प्रोडक्शन में, बिकॉज ताकि कल को वो बता सके भाई इस मॉडल को ट्रेन होने में इतना टाइम लगा, वी कैन नो द एग्जैक्ट टाइम फॉर एग्जैक्ट CPU। आप चाहो भी कभी करना कि अपने दोस्त का कंप्यूटर रखना और उस पर टाइम टाइम का ही डाल के चेक कर लेना, आपको टाइम बताएगा। All right, so history is equal to DNN horsepower underscore model dot fit। और यहाँ पे हमने सिर्फ वही वाला मॉडल है पूरा, बस इसके अंदर हम हिस्ट्री बना रहे हैं इसकी। जो हमने मॉडल ट्रेन हो रहा होगा ना, उसकी हिस्ट्री इसके अंदर आ रही होगी। मॉडल भी ट्रेन हो रहा है हमारा, साथ में उसका जो स्टैटिस्टिकल डाटा होगा किस में आ रहा होगा, हिस्ट्री के अंदर आ रहा होगा, जो मतलब उसकी स्केचेस होंगे, जो उसकी हिस्ट्री होगी, वो सारी इसमें हमारे पास आ गई, जो कि हमारे पास बाद में काम आएगी। ये हम फंक्शन पहले ही बना चुके थे, हमने यहाँ प्लॉट लॉस किया हिस्ट्री का। अब स्टार्टिंग में लॉस और वैल्यू लॉस में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन आगे जाके बहुत डिफरेंस आ गया। सब दिख क्या आ रहा है हमको कि भाई हमारा मॉडल जनरलाइज भी इतना नहीं बन रहा अभी, देर इज सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज हेयर। लेकिन क्या वाकई है, सो लेट्स सी। हमारे पास परफेक्टली फिट तो हो गया है, लेकिन हमारे पास ये आउटलायर इतने ज़्यादा थे कि हमारा यहाँ पे ना एरर बन रहा है, 2 और 4 वैल्यूज़ का कुछ ना कुछ एरर बन रहा है, और ये इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस पे फिट हो गया, किसकी मदद से फिट हुआ, ये हिडन लेयर की मदद से फिट हुआ, जिसमें हमने नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल किए थे। यहाँ पे हमारे पास फिट हो गया। सो लेट्स जस्ट इवेलुएट थिंग्स हेयर। यहाँ पे हमारे पास टेस्ट में इवेलुएट हो गया। अब हम बनाएंगे अपना फुल मॉडल, बी बिल्ड एंड कंपाइल्ड मॉडल। यहाँ पे हमने पूरा को नॉर्मलाइजर डाल दिया जो हमने बनाया था पहले नॉर्मल रिग्रेशन के लिए। यहाँ पे हमारे पास देख लेते हैं ट्रेनेबल पैरामीटर कितने हैं, 4865 है, और नॉन ट्रेनेबल 19 है, क्योंकि हमारे पास इनपुट शिप 9 है, तो हमारे पास 19 इनपुट ऐसे हैं। 9 हमारे पास इनपुट कॉलम्स आ रहे हैं। अब उसमें से हमारे पास 19 नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर डेवलप हो रहा है हमारे पास, ठीक है। सो नाउ वी आर हैविंग टोटल पैरामीटर्स इज इक्वल टू 4884। लेट्स सी, वी गोना ट्रेन इट, टाइम आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, देन वी गोना प्लॉट लॉस इट। ओके, हमारा एरर रेट बहुत डिक्रीज हो गया, पहले से 4 से एकदम 2 पर आ गया, और लेकिन अभी भी थोड़ा सा फर्क है। जनरलाइज तो है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है वैलिडेशन सेट में और लॉस सेट के अंदर, जो कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि क्रॉस वैलिडेशन क्या होती है, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह। लाइफ लेफ्ट, ओके, कलेक्ट द रिजल्ट्स ऑन द टेस्ट सेट। अब यहाँ पे भी हम वही टेस्ट सेट हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, सारी इवेल्युएशन है, मॉडल डॉट इवेल्युएट होता है, हम यहाँ पे वही टेस्ट फीचर डालेंगे, टेस्ट लेबल्स डालेंगे। अब ये डालने के बाद हम मॉडल को इवेल्युएट करेंगे और किसमें स्टोर करा देंगे, टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर। अब हम नोट करेंगे परफॉर्मेंस को।
performance. Now that all the models are trained, check the test set performance and see how they did. ये ऊपर वैलिडेशन सेट अपने अंदर ही एक टेस्टिंग थी। वैलिडेशन सेट के अंदर लॉस फंक्शन मतलब ट्रेनिंग के वक्त ही वो एक डिफरेंट डेटा सेट से अपने आप को वैलिडेट करके चेक कर रहा था कि मैं कितना एक्यूरेट काम कर रहा हूँ। लेकिन अब हम बिल्कुल ही अनसीन डाटा होगा जो मॉडल ने भी कभी जिंदगी में नहीं देखा, हम उससे टेस्टिंग करेंगे इसकी जो हमारे पास अलग से बचा हुआ था। तो ये उसका फंक्शन था पांडास डॉट डेटा फ्रेम टेस्ट रिजल्ट्स डॉट इंडेक्स। यहाँ पे मैंने इंडेक्स में क्या डालना है कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा पास जो भी यू कैन से एनीवेयर और डॉट टी हमारे पास उसका एट्रीब्यूट है। इट गोना प्रिंट दिस, ये हमारे पास उसका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। नाउ these results match the validation error seen during training। ये खैर सही बात बोल रहा है कि हम देख सकते हैं कि कितना हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर था एट टाइम ऑफ ट्रेनिंग। तो हम यहाँ देख सकते हैं आपको कौन सा मॉडल जो है सबसे परफेक्ट काम कर रहा है इन लीनियर रिग्रेशंस, DNN मॉडल। तो ये हमारे पास सबसे परफेक्ट काम कर रहा है, सबसे कम एरर हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर का है। सो फॉर प्रोडक्शन व्हाट वी गोना डू, वी गोना यूज दिस वन मॉडल। यहाँ हम प्रिडिक्शंस बना लें अपनी टेस्ट प्रिडिक्शंस। हमने यहाँ पे टेस्ट फीचर्स डॉट फ्लैटन कर दिया सारी चीज़ों को, डाटा को। देन वी गोना डू प्लॉट एक्सेस एक्सपेक्ट इक्वल, ये बेसिकली यहाँ पे इक्वल कर देगा ना इसको, ऐसे एक्सपेक्ट इक्वल कर रहा है डूइंग नथिंग। एंड प्लॉट डॉट स्केटर टेस्ट लेबल्स टेस्ट प्रिडिक्शंस प्लॉट डॉट ट्रू वैल्यूज और प्रिडिक्शंस। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हम ट्रू वैल्यूज के अगेंस्ट प्रिडिक्शंस डेवलप कर रहे हैं। लिमिट हमने दे दी है 050 की और नाउ हियर वी आर हैविंग और प्रेडिक्शंस। तो ये हमारी प्रेडिक्शंस बेसिकली ये ट्रू प्रेडिक्शंस ट्रू वैल्यूज है हमारी और ये हमारी प्रेडिक्शंस है। तो ये बिल्कुल ना डायगोनल बननी चाहिए। जहाँ पे हमारे पास नीचे आ रही है वैल्यू मींस कि वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा प्रिडिक्ट करिए। जहाँ हमारे पास वैल्यू थोड़ी ऊपर आ रही है मतलब वो एक्चुअल वैल्यू से एम आई राइट, या एक्चुअल वैल्यू से वो आई गेस ऊपर प्रिडिक्ट कर दिया। तो ये कुछ सिनेरियो है, या हम यहाँ पे प्रिडिक्शन और टेस्ट सेट को ट्रू वैल्यूज को आपस में विजुलाइज करके देखते हैं। सो इट लुक्स लाइक अ मॉडल प्रिडिक्ट्स रीजनेबली वेल। नाउ टेक अ लुक एट द एरर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा एक एरर डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट था। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरर इज इक्वल टू टेस्ट प्रिडिक्शन माइनस टेस्ट लेवल्स प्लॉट डॉट हिस्ट्री। हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम सॉरी हिस्ट्री हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया। वी हैव मेंशन प्रिडिक्शन एरर इन MPG। हम बेसिकली देख रहे हैं कि किस रेंज से किस रेंज में सबसे ज़्यादा एरर हमारे पास आ रहा है। सो इन दिस रेंज वी आर हैविंग मोर एरर हेयर। तो हमने आप देख लिया कि हमारे पास ज़्यादा एरर यहाँ पे आ रहा है। सो नाउ अब हमारा मॉडल बन गया है वैसे लीनियर रिग्रेशन का। सो आवर वर्कशॉप इज कंप्लीट नाउ। तो ये सारा हमारा काम हो गया। नाउ एक चीज़ है जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर रखी है विच आई लाइक दैट, आप यूज़ कर सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू सेव दिस मॉडल, अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं ना कि भाई अगर हम अपने मॉडल को बाद में यूज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे। सिंपली मॉडल के आगे डॉट सेव लगा के लिख दो, नाम दे दो उसका, भाई ये नाम है। तो ये आपके एसेट्स में जाके ना ये मॉडल सेव हो जाएगा। इफ़ यू रिलोड द मॉडल इट गिव्स द आइडेंटिकल आउटपुट। रीलोडेड, यहाँ पे आपने लिखा tf.keras.models.load मॉडल, ये पूरा एक फंक्शन है इसका, ठीक है, और ये मेथड कह लो। तो यहाँ पे आपने नाम क्या दे दिया, DNN मॉडल। तो ये आपके पास एक सेव हो गया है। अब रीलोड करने के बाद भी आपको ये वही इवेल्यूशन रिजल्ट्स देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इवेल्यूशन रिजल्ट जो मीन एब्सोल्यूट एरर का आ रहा है वही आ रहा है। तो अभी हम परफॉर्म नहीं कर रहे प्रेडिक्शन इसके ऊपर, वो हम प्रोडक्शन के वक्त करेंगे, लास्ट प्रोजेक्ट में या बीच में भी कर लेंगे, नो वरीज। तो ये हमारे कंक्लूजन थे। दिस नोटबुक इंट्रोड्यूस अ फ्यू टेक्निक्स टू हैंडल अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। हियर आर फ्यू मोर टिप्स दैट मे हेल्प। Mean square error and mean absolute error are common loss function for regression problem. Mean absolute error is less sensitive to outliers. So right, ये चीज़ मुझे पता चली आज, मुझे नहीं मालूम थी, to be very honest. Different loss functions are used for classification problems. Okay. Similarly, evaluation metrics used for regression differ from classification. When numeric input data features have values with different ranges, each values should be scaled independently on the same. Okay, तो हमें पहले ही पता है। ऑलराइट, सो ये थी हमारी एक एडवांस लेवल रिग्रेशन जो आज हमने की। बेसिकली रिग्रेशन करना मकसद नहीं था हमारा, मकसद टेंसर फ्लो के अंदर घुसना था। अब आप इससे खेल ही जितना मर्जी खेल सकते हैं। टुमारो वी गोना डू इमेज क्लासिफिकेशन, और गिटअप पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको अपनी गिटअप भी डालना हो तो आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, नो इशू फॉर दैट। ओके, ऑलराइट।
और यहाँ से डाटा सेट आ गया हमारे पास, ये हमारे पास गिटहब आ गई है। लेट मी सी इज देयर एनी क्यूएनए। स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर बस अब छोड़ दें, या दिस स्टूडेंट्स ड्रॉप टू 300, लोग भाग गए। ऑलराइट, मे बी वी आर जस्ट असाइनिंग एमपीजी वैल्यूज। अच्छी तो पुराना क्वेश्चन। ऑलराइट, so guys, is there any question left? My energy is also down, by the way. My condition was not well in last 2 days. I was too busy as well, and I have already apologized. So, but inshallah, in coming days, we're gonna thrive into TensorFlow as much as we can, and I hope you're gonna do great practice along with me. और वीडियो कब आ रही है? वीडियो जैसी वर्कशॉप खत्म होगी, जैसी आएगी फौरन आ जाएगी इंशाल्लाह, डोंट वरी। All right, someone has asked, sir, can you please explain which is better, TensorFlow or PyTorch? All right, for me, both are equivalent. अभी क्लाइंट की मर्जी होती है वो किस पे आपसे काम मांग रहा है। और even though TensorFlow 1 and TensorFlow 2 are not also the same, why? Because TensorFlow 1 are graph based and TensorFlow 2 are not. So अगर आप TensorFlow 1 के कोड को आप TensorFlow 2 के कोड पे यूज नहीं कर सकते हो। That's the huge difference. That is why we are stick to TensorFlow 2, which is the most unique one. आजकल ना पक पे एक काम होता है, जो पुराने या इंजीनियर थे उनके लिए, अब आप लोग TensorFlow 1 मत पढ़ने बैठ जाइएगा कि TensorFlow 1 के पुराने कोड को नए कोड में अपडेट कर दो, because there is a huge difference, because both are having different architectures. So Google has done this. Yeah, इस पर काम बहुत है। Alright guys, any questions? Any questions guys? Any questions? Or if any of you have not attended our session of Dialogflow by Nofil, so go and check that out. That was really wonderful one. Why my YouTube is not running here? It's taking so much time. Oh man, इतनी देर में तो मेरा मॉडल ट्रेन हो जाता है। जब इतनी देर ले रहा हूँ तो मैं दोबारा खोल लेता हूँ। Actually, my Google Chrome is actually lagging too much. It's just because of the hard drive I'm using right now. Because I am using a very old hard drive just for the sake of not using my this criminal SSD. I'm gonna mention this every time. मुझे बहुत pain है इस वजह से। I'm having huge data on this. All right, let me just go on the channel. Simply write this, navigate this. Even though I learned so many things yesterday, and you can explore every workshop here, so go and check this one out, and you will surely gonna love this. All right, any question guys? For sport data analysis through deep neural net, any suggestion on where I can dataset latest ऑल राइट। लेटेस्ट का तो कुछ खैर मैं कुछ कह ही नहीं सकता। लेटेस्ट तो कोई इतना किस्मत ही होगी आपकी, बट वी कैन सी दैट स्पोर्ट्स एनालिसिस डेटा सेट और रिग्रेशन, बस सिंपल लिख दो। ग्रामर से फर्क थोड़ी पड़ता है, इवन स्पेलिंग से फर्क नहीं पड़ता। तो कैगल पे आ जाना चाहिए। फुटबॉल डेटा एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, ओ माय गॉड, गुड वन, अच्छा डेटा सेट है। अगर आपको मिले तो यहाँ पे भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ, या डिस्कॉर्ड पे शेयर कीजिएगा दूसरे स्टूडेंट के साथ। आई लव टू सी दैट हाउ स्टूडेंट्स गोना परफॉर्म integration. Any question guys? Meanwhile, please ask the question. Our time is out. 9:30 is their ending time. All right. So here you can see in this we are having some sort of data set. कहाँ पर है? यहाँ पे मुख्तलिफ oh. Wow, man. Okay, here we are having some competition as well. All right. ये competition किसका है? Data scientist का है या फुटबॉल का है? Let me see that. Okay. Yes, this is for people like us. $100,000. So competitions है भाई यहाँ पे। अभी ये हो गया था, अभी ये होने वाला है। 2 months to go. बस ये कंपटीशन में मैं ही जीते जाऊंगा इंशाल्लाह। कितने कितने डॉलर्स का है? आई लव इफ वन ऑफ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस।
prize money is very wonderful. Thanks to that person, I don't know his name, but he just let me know एक competition आ रहा है कैगल के ऊपर. I really love to play competition. I have अभी start किया on कैगल. What you can see here. अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा स्पोर्ट्स के डेटा बहुत सारे और भी होंगे और अच्छा है प्रैक्टिस करें सब स्पोर्ट्स डेटा सेट के ऊपर बिकॉज इन कमिंग डेज वी आर हैविंग कंपटीशन वी ऑल हैव टू अप्लाई इन दैट कंपटीशन. यहाँ पे 2014 तक हैं, देख लीजिएगा कौन सा आपको अच्छे मिले स्पोर्ट्स रिग्रेशन एंड देन वी गोना सी. ये रिग्रेशन की था कंपटीशंस हमारे पास 4 पड़े हुए. मेरी कंपटीशंस जो है ना मेरी बहुत वो है माय वीकनेस, सो आई एम गोना सी दैट लेटर. You can also see guys. Any question guys? Further question? All right, so I think everything is cleared. If everything is cleared, so we're gonna end our class today. So all right. Okay. All right, so guys, see you later, and we'll see you in our next workshop. Maybe it will be a classification one, inshallah. Maybe image or maybe text classification. We'll see that. So see you tomorrow, inshallah. Bye bye.